University of Delhi, and SPY student chapter would like to extend a very warm welcome to each one of you present here. This workshop is all about cloud computing, and our mentor for the same is Mr. Ravi Kant from Brain Mentors Private Limited. He has more than 8 years of experience as a data scientist and software professional. He is currently working as a co-founder at Brain Mentors Private Limited and is passionate about providing high-quality technical training on data science and big data. He worked as a data scientist and big data engineer in UTS for more than 2 years. He has trained 2,000 students and more than 100 faculties for various colleges. So now I would like to invite Dr. Ravneet Kaur to welcome Mr. Ravikant. Over to you, ma'am. Ravneet, ma'am. Yeah. Thank you, Shruti. Welcome, Ravikant ji. On behalf of Department of Electronics, Acharya Narendradev College, under SPY student chapter and STAR DBT program, I welcome you. Sir, in this workshop on cloud computing, we have organized few workshops earlier with Brain Mentors, and all of them were of huge success. So we, on the same line, we're hoping that this will be the milestone in that. And I think students, we all are delighted to have you with us in participating in this workshop. And we sincerely hope that everyone will understand the concept covered in this workshop. So with these notes, I welcome you, Ravikantji, and hope to have a fruitful 5-day hands-on workshop with you. A very good afternoon, a very good evening to all of you. So, guys, this side Ravi. So, I hope all are good and well, like survive the difficult time of COVID-19. So now we'll be starting with the cloud computing, AWS and all first. Okay, so let me share the screen first. So before starting the session, can I have a basic introduction from your side, guys? Like what is the background you have and what are the technologies you are already aware of? You can just mention your answers in the chat window. Hello, guys. Am I audible to you? Yes, sir. Okay, so guys, please do answers the whatever the questions I'm going to ask. Like, what is your background? What are the technologies you have learned so far? Okay, BSc Electronics, Nanoscience student, Python, MATLAB. Okay, Python, C++. Okay, so I guess a lot of students are from the EC background here. Few of you are from CS as well. Okay. Okay. Thanks for the answers, guys. And now, is there anyone who knows something about cloud computing? Anything, like whatever you understand by. Okay, so let's not take this thing as like you know or don't know. It doesn't matter. What do you understand by cloud computing? You can tell me that. Okay, I'm not asking like in some sort of a testing way. I just want to see like what is the prior knowledge you have
of the cloud computing, because it's a very, very popular term, and you might be hearing this term from different, like your friends and a lot of people working in the IT industry. In fact, you are daily using that particular service. Yeah, storing data on internet. Okay, saving the big data on servers. It's a remote server. We can store our data and manage it. Working with databases. Okay. Or anything else? Storing data and accessing it. Except data. Like this is the one thing everyone is giving me the answer of storing data and all. Except that. Is there anything else that we can do except the storing the data and all? Delivery of computer services. Like, can you give some example, Vaibhav? Delivery of computer service means what? Server. Okay. Cloud gaming, storage database, network. Yep. Instead of making on web servers, we put Hmm. our web application on other Okay. server. Okay. So if I talk about, like, frankly with you, all of you, when we talk about cloud computing, it's not a new thing that you are like using or learning today. The concepts you have to learn, actually. Only the concepts you have to learn. You are already using some sort of cloud services on daily basis. Okay. You are using, like, Google Drive is a cloud service. Google Docs is a cloud service. Then you are using, if you are using Azure, if you have heard about that, it's a cloud service. Okay, so there are like a lot of cloud services that we use directly or indirectly in today's time. But the thing we have to do today, from today onwards, like, we have to learn how to do the cloud and what exactly the concepts goes behind it, how it works internally. These are the things that we are going to talk about. Okay, so I think we can start the session now. Okay, so first of all, if we talk about simply cloud computing. Okay, so what was the need of cloud computing? First, before going into the detail of what is cloud computing, we need to understand the need of cloud computing. Okay, can anyone tell me what is the need of cloud computing? Like, we are working with different kind of application like Google Drive and all. Okay, but still I can say Google Drive is not like that helpful, because it is just providing me 15 GB of free space. After that I have to pay. Okay, instead of doing that, I can purchase pen drive and I can store my data in that, or I can purchase a hard disk, I can store my data on that, if I talk about simply storage of data. Okay, now what do you think, guys? What is the need of cloud computing? Easily accessible. Okay, or we can access the data anywhere. Yeah, this point is good. We can access the data anywhere. Management of data security with increase in IT world and software world, storing data in physical forms. Storing big data, storing data for business purpose, ease of use, like pen drive and hard disk are difficult to manage, reduce cost and access anywhere. Okay, so I guess you guys are like pretty aware of the thing that you are learning today. The 5-day session we have, I guess it will be a very interesting session because you are already familiar with some sort of needs. But I'll tell you about few more needs in detail. Okay. There is one question that I would like to ask. Do you want me to continue in English, or we can have conversation in our own language, Hindi? Or I can mix it if there are some participants who are on like English only, who understand English only. So bilingual mode will be good. Okay.
because a lot of students are like shy. They won't tell that they want to listen something in Hindi. Okay. So guys, first of all, let's talk about the need of cloud computing. सबसे पहले बात करते हैं cloud computing की जरूरत क्या है. Okay. Let's take one example. Suppose you want to host a website. आप इस बात का मतलब समझते हैं? Hosting a website का मतलब समझते हैं यहाँ पर सब लोग? Is there anyone who don't understand the meaning of hosting a website? Website host करना किसको कहते हैं? I hope सब लोग जानते हैं. अगर कोई नहीं जानता है, if someone is not aware, please let me know. Okay. आप लोगों ने एक एड देखा होगा, MS धोनी का एड आता है टीवी पे, गो डैडी. देखा भी आप लोगों ने? है ना? नहीं भी देखा हो तो नाम सुना होगा. गो डैडी एक नाम है, और बिग रॉक ऐसे करके there are few names. Okay, so like if I talk about now some sort of web application, आपको वेब एप्लीकेशन बनानी है. वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि लाइक मुझे एक सिंपल आपने वेबसाइट ही बनानी है. लाइक गूगल मीट क्या एक वेबसाइट ही तो है ये. इट्स अ वेबसाइट, इट्स अ वेब पेज दैट वी आर ऑन राइट नाउ. आप amazon.com पर जाते हो, इट्स अ वेब पेज. आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, इट्स अ वेबसाइट. ये ईच एंड एवरीथिंग, दीज आर द वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस एंड ऑल. ये सब चीजें क्या है? वेबसाइट्स है, वेब पेजेस है. Similarly, you want to deploy some sort of web application. मतलब आपने क्या किया? एक वेबसाइट बनाई अपनी लोकल मशीन पे. क्योंकि जब आप एक वेबसाइट बनाओगे, कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे, कोई एप्लीकेशन बनाओगे, वो कहाँ पर होगा? वो आप ही की मशीन में होगा. अब उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हो. What is the process? The process is very simple, that you have to make that particular application live. आपको क्या करना है? उस एप्लीकेशन को जाकर लाइव करके आना है. ओके, लाइव करने का मतलब क्या होता है? लाइव करने का मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर मैंने अपने लोकल सिस्टम पे कोई एप्लीकेशन बनाई है ना, आप उसको अपने फ्रेंड को भी नहीं दिखा सकते. क्यों नहीं दिखा सकते? बिकॉज यू हैव टू शेयर योर कंप्लीट कोड. आपको कोड शेयर करना पड़ेगा अपने फ्रेंड को, तब जाकर वो आपके कोड को रन करेगा. बट आप तो ऐसा नहीं करते ना. जब आप एक वेब एप्लीकेशन को रन करते हो, आप Amazon पे जाते हो, amazon.in लिख कर एंटर कर देते हो. क्योंकि ये जितने भी amazon.in हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक, एनी वेब एप्लीकेशन इन दिस वर्ल्ड, जितनी भी इस दुनिया की वेबसाइट्स हैं, वेब एप्लीकेशन है, ये सब क्या है? लाइक दे आर ऑन सम HTTP प्लेटफॉर्म. ये सब कहाँ पर है? ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर है. आप लोग कहाँ पर हो? आप लोग लोकल नेटवर्क पे हो. ये सब ग्लोबल नेटवर्क पे है. मतलब तो साफ समझ आता है अभी. लोकल का मतलब क्या हुआ कि इन योर मशीन. ग्लोबल का मतलब वर्ल्ड वाइड, एनीवन कैन एक्सेस. हाउ? इसके लिए आपको कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जैसे कि GoDaddy होता है. क्योंकि ये क्यों चाहिए? ये इसलिए चाहिए बिकॉज यू नीड अ सर्वर स्पेस. सर्वर स्पेस क्यों चाहिए? क्योंकि अब आपने सपोज क्या किया, आपके पास देखो अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग होती है. सपोज यू आर वर्किंग विद पाइथन प्रोग्रामिंग और यू आर वर्किंग विद जावा. आप अगर कोई जावा पे एप्लीकेशन बनाते हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, कोई वेब एप्लीकेशन बनाओगे, तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? दैट हाउ यू आर गोइंग टू पब्लिश इट. इसको दुनिया को कैसे दिखाओगे? इंटरनेट के थ्रू. लेकिन इंटरनेट के थ्रू भी कैसे? मैं इंटरनेट पे जाकर ऐसा क्या करूं कि मेरी वेबसाइट सब पूरी दुनिया देखनी शुरू कर दे? What is the thing that I have to do? The thing I just have to do is कि मुझे जाकर सिर्फ इतना काम करके आना है कि मेरे को कोई GoDaddy या बिग रॉक ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको डोमेन प्रोवाइड करते हैं. ओके, डोमेन्स क्या होते हैं? .com, .in, इस तरह के डोमेन नेम्स होते हैं विद सम सर्वर स्पेस. आपने एक वेबसाइट बनाई, आपको पता है कि मेरी वेबसाइट को चाहिए कुछ 1 GB स्टोरेज. ओके, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ. आप क्लाउड के साथ रिलेट कर जाओगे आसानी से. आपकी वेबसाइट को क्या चाहिए? आपकी वेबसाइट को 1 GB की जगह चाहिए. यू नीड 1 GB ऑफ डेटा, क्योंकि आपकी वेबसाइट में ऑडियो है, वीडियो है, इमेजेस हैं, बहुत सारी चीजें आपने अपलोड करनी है. नाउ आफ्टर दैट यू नीड सम सॉर्ट ऑफ अ सर्वर जो आपको ग्लोबल 1 GB स्पेस देगा. क्योंकि 1 GB जो स्पेस है वो अभी कहाँ पर है? आपकी लोकल मशीन के अंदर है. वो अभी गेटिंग माय पॉइंट? अभी वो जो 1 GB का स्पेस है वो कहाँ पर है? इनसाइड योर लोकल मशीन. इट्स नॉट ऑन अ पब्लिक डोमेन जो पूरी दुनिया देख सके. दैट्स व्हाई यू नीड टू परचेज सम सर्वर स्पेस. आपको क्या चाहिए? एक सर्वर स्पेस खरीदना होगा. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. सपोज GoDaddy वेबसाइट पर चलते हैं. ओके, तो ये क्या करता है? सिंपली आपको डोमेन नेम्स प्रोवाइड करता है कि मुझे अगर किसी भी अपनी वेबसाइट को बनाना है, लाइक मैंने क्या किया, आज मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं जोमेटो जैसा कुछ बनाना चाहता हूँ. मेरे दिमाग में जोमेटो जैसा कुछ आइडिया, बस मुझे उसको लाइव करना है. लाइव करने के लिए एक डोमेन नेम चाहिए.
डोमेन नेम जैसे कि GoDaddy एक डोमेन नेम है, गूगल एक डोमेन नेम है, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, ऑल दीज थिंग्स आर डोमेन नेम। आपने सोचा कि मेरी वेबसाइट का नाम जोमेटो नहीं, मेरी वेबसाइट का नाम टोमेटो होगा। लेट्स सर्च कि टोमेटो है क्या इसके पास। हमने कुछ ऐसा सर्च करना शुरू किया। ओके, तो इसने आपको ना बताना शुरू किया कि देखो टोमेटो के डोमेन नेम अवेलेबल है ये सब, लेकिन tomato.com इज ऑलरेडी टेकन, मतलब tomato.com पर पहले से कोई वेबसाइट रजिस्टर्ड है, तो आप .com परचेज नहीं कर सकते, यू हैव टू बाय सम अदर डोमेन। ओके, अब अगर मैं कोई और डोमेन परचेज करूँ तो उसकी रेटिंग मेरे सामने है। देखो, अगर आपको बोला जाए कि ये डोमेन खरीदना है, तो लुक एट द कॉस्ट ऑफ दिस डोमेन। आप देख रहे हो डोमेन नेम की कॉस्ट कितनी है यहाँ पर। इट्स अ कंप्लीट बिजनेस, ये एक अलग ही बिजनेस होता है। ओके, तो आपको दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आता है, आप इस डोमेन नेम को परचेज कर लेते हो, बदले में ये लोग आपको क्या करते हैं, एक सर्वर स्पेस देते हैं, यानी कि क्लाउड स्पेस मिलता है आपको, ग्लोबल स्पेस मिलता है, जहां पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर देते हो। अभी तक आपकी वेबसाइट कहां पर थी, लोकल, लोकल होस्ट इसीलिए वर्ड यूज किया जाता है। नाउ योर वेबसाइट इज ऑन अ ग्लोबल होस्ट। ओके, वो किसने प्रोवाइड किया, GoDaddy जैसे किसी ने आपको प्रोवाइड कर दिया। दैट्स व्हाट होस्टिंग अ वेबसाइट इज, कि आपने वेबसाइट बनाई लोकल मशीन पे, कोड अपलोड किया ग्लोबली, GoDaddy ने आपको एक सर्वर स्पेस दिया था, वहां पर आपने अपलोड किया। जैसे कि आप लोग GitHub के बारे में जानते हैं ना, github.com, यहाँ पे आप कुछ कोड अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी वेबसाइट्स को लाइव भी कर सकते हैं। ओके, सो GitHub इज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म दैट इज प्रोवाइडेड टू यू। ओके, guys, am I audible or is my screen stuck? My voice is clear na? Okay, might be camera is not, it is okay, let me stop it. Okay, तो अभी हम लोगों ने बात की यहाँ तक कि हम लोगों के पास कोई क्लाउड एक स्पेस मिल जाता था, ठीक है, अभी तक हम लोगों को यहाँ तक समझ आया। अब आपने कॉस्ट भी देख लिया। अब होता क्या है, कॉस्टिंग कैसे वर्क करती है कि अभी आपकी वेबसाइट अगर 1 GB का स्पेस चाहती है तो एटलीस्ट यू नीड टू पे 3000 और 4000, 3 से 4000 रुपए का खर्चा आता है एक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग राइट नाउ। अभी हम सिर्फ नीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, मैं यहाँ लिखता हूँ, एक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए व्हाट यू नीड इज अ सर्वर, डेटाबेस एंड सम सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर। ओके, तो एक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए किस किस चीज की जरूरत है, एक सर्वर स्पेस की जरूरत है, एक डेटाबेस की जरूरत है, कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जरूरत है। हार्डवेयर तो आपको इसलिए चाहिए ना क्योंकि आपकी मशीन होगी, आपका लैपटॉप होगा, आपका कंप्यूटर होगा जिस पर आपने अपनी वेबसाइट को बनाया है। फिर कुछ ऐसे हार्डवेयर सर्वर्स भी आप परचेज कर सकते हो जहां पर अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल से इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेता हूँ। आप लोग ऐसे जानते हैं, आप लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे पाइथन है, पाइथन इज ओपन सोर्स, ये बात जानते हैं ना आप लोग। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि पाइथन इज फ्री, यही होता है। नाउ इफ आई से कि अगर पाइथन फ्री है तो क्या पाइथन फ्री में अपनी सर्विसेज दे रहा है? आप लोग पाइथन फ्री में पढ़ते हो, एप्लीकेशन बनाते हो, देन हाउ पाइथन इज अर्निंग? पाइथन अर्न कैसे कर रहा है फिर? और इफ आई टॉक अबाउट एनी अदर प्रोग्रामिंग लाइक देयर इज जावा, कि मैं बात करूं जावा पे तो दुनिया की सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है। फिर जावा अर्न कैसे करता है? ओरेकल कंपनी पैसे कैसे कमा रही है? ये क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? क्वेश्चन क्या है यहाँ पर मेरा, कि जावा सब लोग पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, डिप्लॉय भी कर रहे हैं, देन ओरेकल को क्या फायदा हो रहा है? ओरेकल कैसे पैसे कमा रहा है इन सब चीजों से? कोई सोच सकता है इस बात को? सर पाइथन लाइक स्पॉन्सर्स होते होंगे। क्या होते होंगे? स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स। यस सर। एंड जावा आप बता दें। ठीक है, और कोई किसी के दिमाग में आंसर है कि अगर ये लोग ओपन सोर्स है तो पैसे कैसे कमा रहे हैं फिर?
I guess to publish a program which is coded in Python, they have to pay some money to Python through the website, donations maybe. अच्छा अच्छा, देखो यार ऐसा होता है कि if we talk about like seriously about these things, ये लोग लाखों में कमाते हैं, लाखों करोड़ों में एक एक सॉफ्टवेयर पे। कैसे? लेट मी शो यू वन थिंग। एक सर्वर होता है जिसका नाम है सोलरिस, ठीक है? तो ओरेकल जैसे लोगों को क्या होते हैं, सर्वर्स होते हैं, और ये जो सर्वर्स होते हैं इनकी कॉस्ट होती है 9 से 10 लाख रुपए तक। मतलब ये स्टार्टिंग होती है यहाँ से 9-10 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है इनकी। तो ओरेकल का एक सर्वर आता है सोलरिस। मैं सिर्फ आपको एक जावा का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे पाइथन हर किसी के अपने सर्वर्स होते हैं। आप लोग एक बात सोचो, आप बैंक में जाते हो, बैंक में एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, जितने भी कंप्यूटर हैं वो उसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, और सिर्फ उसी ब्रांच में नहीं, जहां भी उस बैंक के अलग अलग ब्रांचेस है, हर जगह पर क्या हो रहा है, दे ऑल आर यूजिंग द सेम सॉफ्टवेयर। क्योंकि भाई अगर मैं बोलूं कि सपोज पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक को सॉफ्टवेयर बनवाना था अपना, उसने अपना सॉफ्टवेयर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस कंपनी को दे दिया। अब टीसीएस कंपनी का क्या काम है, टीसीएस कंपनी ने जावा पे प्रोजेक्ट बनाकर उसको डिलीवर कर दिया। अब क्वेश्चन ये है, इसमें जावा का क्या फायदा हो रहा है? हाउ जावा इज अर्निंग? जावा ने तो, आपने क्या किया, टीसीएस के 4 लोग अपनी टीम बनाई, टीसीएस के 40 लोगों की, उन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिया बैंकिंग का। अब क्वेश्चन ये है, बैंक वालों को भी फायदा हो गया, टीसीएस वालों को भी फायदा हो गया, जावा वालों को क्या फायदा हुआ? नाउ व्हाट बैंक्स नीड? सबसे ज्यादा बैंक को किस चीज की जरूरत है? सिक्योरिटी सर। एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा बैंक्स को किस चीज की जरूरत है? सिक्योरिटीज की जरूरत है। सिक्योरिटी कौन देगा? एक सिक्योर्ड सर्वर देगा। वो सर्वर कौन देगा? ओरेकल खुद देगा। कहता है ये लो, आई एम प्रोवाइडिंग यू सम सॉर्ट ऑफ अ सर्वर। तो इस तरह के जो सर्वर होते हैं, इनकी जो कॉस्टिंग्स होती है वो है जो मतलब लाइक प्रीमियम थिंग, जिसकी वजह से ये लोग अर्न करते हैं। आप लोग इसकी कॉस्टिंग देख सकते हो, देखो। ओके, तो ये कुछ मंथली भी होते हैं, ईयरली भी होते हैं, इनको रेंट पे भी लिया जा सकता है, आप इनको परचेज भी कर सकते हो। क्लियर हो गई ये बातें आप लोगों को कि भाई अगर किसी कंपनी, आपने किसी प्रोग्रामिंग के ऊपर काम किया है तो उस प्रोग्रामिंग के अब सर्वर चाहिए होंगे आपको, वो सर्वर आपको खरीदने पड़ते हैं। अब कोई बैंक, अगर पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक जैसा कोई इतना बड़ा बैंक है, उसको इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी चाहिए, तो सोचो कितना खर्चा उसको सिक्योरिटी पे करना पड़ता होगा, कितने सर्वर उसको परचेज करने पड़ते होंगे। तभी तो सर्वर रूम इतने बड़े बड़े होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, मूवीज में दिखाते हैं सर्वर रूम्स। ऐसा ही कुछ दिखाया जाता है ना मूवीज में। क्या होता है, सर्वर के रूम्स होते हैं जिसमें जाकर कोई छेड़छाड़ कर देता है और पूरे कंट्री की लाइट वाइट चली जाती है, दिखाते तो ऐसा है। बट इफ वी टॉक अबाउट इन जनरल कि सर्वर रूम्स इस तरह के दिखते हैं यहाँ पर। तो सर हर बैंक का सर्वर रूम होता है? बिल्कुल होते हैं। आपके कॉलेज में भी है, आपके कंप्यूटर लैब में भी सर्वर रूम है, देखा नहीं आपने? वो तो लोग हर जगह होता होगा नहीं। देखो, जब भी आपके क्या होता है, हर जगह सर्वर्स लगे होते हैं, छोटे मोटे लगे होते हैं, ऐसे नहीं बड़े बड़े लगे हर जगह। जितने भी बैंक्स होते हैं, हर किसी के सर्वर रूम्स होते हैं, ठीक है। और जिसका जितना बड़ा सॉफ्टवेयर, उसको जितने ज्यादा उसके पास कस्टमर होंगे, जितना बड़ा उसका डेटाबेस होगा, उतना ही बड़ा उसको सर्वर स्पेस चाहिए। ओके, और अब जैसे कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में भी तो सर्वर्स होते हैं, सर्वर रूम्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें भी सर्वर डिप्लॉय होते हैं, ठीक है। तो हर जगह सर्वर्स की जरूरत होती है, ठीक है। वापस आते हैं, ये तो हो गया कि हम लोगों को इतनी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, डेल है, ये आसूस, आपने सुना होगा कितनी बड़ी कंपनी है, इसके सर्वर्स आते हैं, बहुत महंगे महंगे सर्वर आते हैं, चाहिए हार्डवेयर चाहिए। अब इन सब चीजों के लिए यू नीड अ टीम। अब आपको क्या चाहिए? यू नीड अ टीम टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए टीम भी तो चाहिए। देखो, जो सर्वर साइड की चीजें जानता है, उसका एक आपको 1-2 लोग उसको संभालने के लिए चाहिए। जो डेटाबेस के एक्सपर्ट होते हैं वो लोग चाहिए, जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के एक्सपर्ट होते हैं वो लोग चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली उन सबको आप पे भी करोगे। जैसे कि भाई आपने अगर किसी सर्वर वाले बंदे को हायर किया तो उसके अकॉर्डिंग जो उसकी सैलरी है वो जाएगी, जो डेटाबेस वाला बंदा है उसकी सैलरी अलग जाने वाली है। सोचो, यही तो होगा एट दी एंड। तो हर चीज की कॉस्ट है, और उसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट अलग है, सर्वर की कॉस्ट अलग है, और जो जिन लोगों को आप सैलरी दे रहे हो उनकी कॉस्ट अलग है। सो जस्ट इमेजिन द कॉस्ट नाउ। तभी तो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं करोड़ों के होते हैं ना। अब बात समझ आई आप लोगों की, इतने करोड़ों के प्रोजेक्ट्स क्यों बनते हैं कंपनी में? कंपनी में एक साल तक एक प्रोजेक्ट चल रहा है और उसकी कीमत होती है 100 करोड़, 500 करोड़, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं बड़े बड़े। तभी तो ये कंपनीज चलती रहती है।
ठीक। अब इसके बाद क्या होता है कि इफ वी टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ सर्वर, देन देयर आर टू वेज, आइदर यू कैन रेंट अ सर्वर और यू कैन ऑन अ सर्वर, या तो आप रेंट कर सकते हो या खरीद सकते हो अपना, ठीक है। और कॉस्टिंग मैंने आपको थोड़ा एग्जांपल दिखा दिया है, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू परचेज सर्वर, तो उस सर्वर को रखने के लिए एक डेटा सेंटर चाहिए। होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो होते हैं हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, वी नीड अ डेटा सेंटर, ओके। इसके बाद क्या होता है कि अब मान लो आपने क्या किया, आपके पास एक सर्वर रूम है, वहां पे डेटा सेंटर बोल रहा हूँ जिसको मैं, जिसके अंदर आपने अपने सर्वर्स को स्टोर किया हुआ है। अब एक सोचो, दिमाग लगाओ कि इफ सम इश्यू कम्स एट द मिड ऑफ द नाइट, रात में ऐसा होता है ना, कई बार कोड फट गया, आपने माइट भी ये टर्म सुना होगा, कोड फट जाता है कई बार। कंपनीज में क्या है कि भाई आपको एक वेबसाइट थी, आज काम कर रही थी, कल तक क्या वो बंद हो गई, रात में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वेबसाइट बंद हो गई, कुछ भी हो सकता है इशू। तो अब सोचो कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इमीडिएटली यू जस्ट हैव टू गो इन दैट रूम, वहां जाना है आपको, फिगर आउट करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, और उसके बाद उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। और ये गारंटी नहीं है कि आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी, माइट भी ये प्रॉब्लम फिर से आ जाए। सोचो, अब आप लोगों ने सोचा क्या हुआ है यहाँ पर कि भाई आपने इतना बड़ा सॉफ्टवेयर चलाया हुआ है, इतनी बड़ी एप्लीकेशन चलती है आप लोगों की, और अगर आप, इसीलिए तो लोग नाइट शिफ्ट में भी काम कर रहे होते हैं, समझ आती है ना ये सब बात। आपने रिलेट करना शुरू करो, रिलेट ईच एंड एवरीथिंग, इसीलिए तो लोग रात में भी बैठ के काम कर रहे हैं दुनिया में। तो क्या हो रहा है कि सबको मैनेज करना है डेटा सेंटर्स को, और इसके लिए प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि कभी भी कुछ भी फट सकता है, कोड सर्वर डाउन हो सकता है। सर्वर अगर डाउन हो गया तो लाइक यू हैव टू आइदर रीस्टार्ट द सर्वर, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जाकर उस जगह पर, फिजिकली यू हैव टू विजिट दैट पर्टिकुलर प्लेस। बट नाउ बिकॉज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग वी हैव अ मच बेटर सॉल्यूशन, हम लोगों के पास एक बहुत बेहतर सॉल्यूशन है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम की अगर बात करें, अदर प्रॉब्लम इज सपोज यू हैव अ सर्वर कैपेसिटी ऑफ 16 GB। आप, मैंने आपसे क्या बात की थी थोड़ी देर पहले कि आपने एक वेबसाइट बनाई, वो 1 GB का सर्वर स्पेस की थी, लेकिन अब आपकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई, आपकी जरूरत बढ़ चुकी है भाई, अब क्या करें। लेकिन आपके पास तो एक लिमिटेड रैम थी, आपके पास तो एक लिमिटेड हार्ड डिस्क है। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सिस्टम की, लैपटॉप की रैम बढ़वाई है कभी ना कभी? Is there anyone who has extended the RAM of their laptops? बढ़वाई है, ठीक है। अब मुझे रीजन बताओ क्यों, what was the reason? आप लोगों को ऐसा क्यों लगा कि आपको अपने सिस्टम की रैम इंक्रीज करानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए? सिस्टम लैग क्यों हुआ? हैवी सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। और टू इंक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है जी। और कोई रीजन? लैपटॉप कुड नॉट सपोर्ट सम सॉफ्टवेयर, बिल्कुल ठीक है, ये भी कह सकता हूँ मैं। और मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना कि आज की डेट में जो एप्लीकेशंस आते हैं, सपोज आप गेम खेल रहे हो कोई, और गेम देखते हो ना कितने हैवी होते हैं आज की डेट में, वो 4 GB और 8 GB रैम पे तो चलते ही नहीं है। गेट योर पॉइंट? इसीलिए सब लोग क्या करते हैं कि जिनको हाई परफॉर्मेंस चाहिए उनको ज्यादा एक्सपेंड करानी पड़ती है। अब सोचो आपको क्या करना पड़ता है जब रैम एक्सपेंड करानी पड़ती है, आपको जाना पड़ता है उसकी दुकान पर जो भी रैम इंक्रीज करके देता है आपको, ओके। तो जैसे भाई अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप कहीं जाओगे नेहरू प्लेस एंड ऑल, जाके अपनी रैम बढ़वा के आओगे, यही करोगे ना आप। तो सोचो इस प्रॉब्लम को अगर हम रियल टाइम सोचे कि मेरी कोई वेबसाइट है, मेरी कोई एप्लीकेशन है बहुत बड़ी, मेरा उस पर बिजनेस चलता है, और उस बिजनेस के बीच में ये प्रॉब्लम आ गई कि मेरी रैम खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं? अब क्या है कि आप खरीद के लेके आओ रैम, उसको सर्वर में इंस्टॉल करो जाकर। ये बात समझ आई ना आपको? या फिर क्या होता है, जो डेटा सेंटर्स के प्रोवाइडर्स होते हैं वो अपने किसी डेटा सेंटर वाले बंदे को भेजते हैं आपके सर्वर को रिसाइज करने के लिए। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है जब आप एक फिजिकल सिस्टम पे बैठे होते हैं। फिजिकल सिस्टम जैसे कि आपके सामने आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, ऑल दी सिस्टम्स आर फिजिकल, ओके। ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर? किसी को कोई भी यहाँ तक क्वेश्चन है, क्वेरी है तो बताओ। सबको ये बातें समझ आ गई है सर? लेकिन सर्वर और जावा का रिलेशन समझ में नहीं आया। सर्वर और जावा का रिलेशन ये है, देखो कि जावा किसकी लैंग्वेज है? ओरेकल की है ना, ठीक है। जावा की लैंग्वेज है ओरेकल, सॉरी ओरेकल की लैंग्वेज है जावा। आप जब जावा को लाइव करोगे, जावा की किसी एप्लीकेशन को लाइव करोगे तो एक सर्वर चाहिए होता है हमेशा।
विदाउट एनी सर्वर कोई भी वेब एप्लीकेशन लाइव नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, आपको जावा का सर्वर चाहिए। जावा का सर्वर कौन देगा, जावा का सर्वर ओरेकल देगा। मतलब जावा का सर्वर और कोई नहीं बना सकता? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है और कोई नहीं बना सकता। देखो ओरेकल क्या है, ओरेकल तो एक जावा का मेन, ऐसा समझ के चलो ना कि उसी के स्टैंडर्ड्स पे चलती है। जो जावा का ऑनर है वो कौन है, ओरेकल है। तो अगर आपको बेस्ट सर्वर चाहिए कि हाँ जी आई जस्ट वांट द मोस्ट परफेक्ट द सिक्योर्ड सर्वर, जो किसने बना कर दिया है, ओरेकल ने दिया है, तो ओरेकल का ही हम सर्वर यूज करें। ऐसे तो देखो बहुत सारे अलग अलग तरह के सर्वर्स होते हैं। पहले हाँ ओरेकल ओन्स जावा, पहले क्या था, सन माइक्रो सिस्टम्स के पास थी जावा, लेकिन अभी ओरेकल के पास है। ओके तो क्या होता है कि जब भी आप ये सर्वर की बात करें ना, तो समझ लो ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप अपनी मशीन पे लोकली मतलब सिर्फ अपने अपने कंप्यूटर में किसी चीज को देखना चाहते हो एक यूआरएल पे, तो उसके लिए भी एक सर्वर चाहिए होता है छोटा सा। ओके तो कोई भी चीज विदाउट एनी सर्वर चलती ही नहीं है। अगर आप उसको एक सर्वर पे देखना चाहते हो कि लाइव कैसा परफॉर्म करेगा, आपको उसके लिए सर्वर चाहिए। सर्वर कौन देगा, कोई ऐसी कंपनीज है, और अलग अलग कंपनीज है ना। मैंने बताया ना, डेल है, डेल के बहुत अच्छे सर्वर्स आते हैं, महंगे भी आते हैं। आसूस के सर्वर आते हैं, अलग अलग कंपनीज है, एचपी के सर्वर्स आते हैं। ये सब लोग भी तो सर्वर प्रोवाइड करते हैं। ओके तो ये था हम लोगों का नीड ऑफ क्लाउड, कि क्लाउड की सबसे पहले जरूरत इसलिए है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो राइज होती थी। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ये तो हो गया नीड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग जस्ट दी सम सॉर्ट ऑफ लाइक, आप लोगों ने खुद इतने सारे आंसर्स दिए हैं कि इंटरनेट पे डेटा स्टोर करना है, मैनेज करना है, प्रोसेस करना है। एक लोकल सर्वर की जगह हमें क्लाउड पे सारी चीजों को एक्सेस करना है। सो आई विल सिंपली राइट हियर दैट यूज ऑफ network of remote servers hosted on internet to store, manage and process data rather than on a local server. Okay. So this is the basic definition of cloud computing, कि आपको क्या करना है, नेटवर्क पे कुछ होस्ट करना है, डेटा मैनेज करना है, प्रोसेस करना है। इस तरह की चीजें जो आप करना चाहते हो। ओके और बिल्कुल सिंपल टर्म में बताऊं तो मैं, एक्सेसिंग योर डेटा ओवर इंटरनेट, स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग योर डेटा ऑन इंटरनेट, इट्स इट। यही तो कर रहे हो आप। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, धीरे धीरे बात करेंगे सर्विसेज के बारे में। ओके नाउ फाइनली वी आर लाइक क्लियर। अब हमारे लोग, हम सबके माइंड में एक चीज क्लियर हो चुकी है कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्लाउड एंड व्हाई वी आर लर्निंग क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इन सब बातों का सॉल्यूशन हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि डायनामिकली मैं चाहता हूँ मेरी जो रैम है ऑटो स्केल हो जाए। ऑटो स्केल का मतलब रन टाइम पे अपने आप इंक्रीज हो जाए जब जरूरत पड़े तब। यही तो फैसिलिटीज चाहिए ना हमें। तो विल बी टॉकिंग अबाउट दीज फैसिलिटीज। ओके अब इसके बाद क्या होता है कि भाई अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ एग्जांपल्स दूं तो ऑब्वियसली AWS इज द बेस्ट एग्जांपल एंड देन Azure इज अनदर एग्जांपल। अगर आपने सुना माइक्रोसॉफ्ट Azure का नाम, तो AWS तो आप पढ़ ही रहे हैं इस कोर्स में। ओके over this thing we have three important characteristics of cloud computing. Three important characteristics. And what these characteristics are? First thing is on demand and self-service. This is the first characteristic of cloud computing. Second thing is elasticity. And third thing is measured. Okay, so these are the three important characteristics of cloud. क्या क्या characteristics है? First is on demand and self-serviced, जिसका मतलब होता है you can launch anytime without manual intervention.
ओके, सेल्फ सर्विस का मतलब ही क्या हुआ कि भी अपने आप कर सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है कि किसी को हायर करो वो आपके सर्वर को मैनेज करे. यू कैन लॉन्च, स्टार्ट, स्टॉप योर एप्लीकेशंस एनी टाइम. इलास्टिसिटी नाम से ही समझ आता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में बहुत बार किसी ना किसी जगह पर. यू कैन स्केल अप एंड डाउन एनी टाइम. आई एम जस्ट राइटिंग लाइक वन लाइन. एनी टाइम लॉन्च without manual intervention. Okay, elasticity means scale up and down anytime. Scale up and down anytime. And finally the measured. Measured का मतलब होता है pay what you use. Okay, तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है हम लोगों का, पे व्हाट यू यूज. या टर्म तो नहीं, मतलब मेजर्ड एक सिंपल टर्म है, बट इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कि जितना यूज किया है उतना ही आपको पे करना है. नहीं तो मैंने आपको बताया कि आपने godaddy.com जैसी किसी वेबसाइट पे आप जाते हो, वो मिनिमम आपको 1 GB का सर्वर स्पेस देता है. आपने बोला मेरी वेबसाइट तो 50 MB की है, वो बोलेगा मेरे पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू परचेज ऑफ 1 GB. सोचो, ये बात समझ आई आपको? आपने खरीदा कितना स्पेस? 1 GB का. आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी? 50 MB की. सोचो. सो दिस थिंग इज सेइंग पे व्हाट यू यूज. जितनी देर यूज कर रहे हो और जितना यूज कर रहे हो, लाइक द मेमोरी एंड द टाइम, जितने स्पेस यूज कर रहे हो और जितनी देर के लिए आप उस सिस्टम को यूज कर रहे हो, जस्ट पे फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस ओनली. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? Just a second, I just missed few doubts from you guys. Is there any chances of free storage availability for hosting a website or launch? हाँ बिल्कुल, there are a lot of options. जैसे भाई देखो, एक क्वेश्चन पूछा असादुल्लाह मुरादी ने, मैं जस्ट नाम ले रहा हूँ ताकि सब लोग सुन सके. Is there any chance of free storage availability or hosting a website or launching it internet? बहुत सारे options हैं. One of the example is Heroku. सुना भी आप में से किसी ने इसका नाम? Heroku. So it's a cloud platform as a service supporting several programming. One of the first cloud platform has been developed in since June 2007 when it supported only the Ruby, but now support Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP, Go. फ्री में जाकर आप होस्ट कर सकते हो. और ये देखो क्या यूज करता है. इट यूजेस अ PaaS, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, मैं इसको आज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ कि पास क्या होता है, ये PaaS क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. सो Heroku इज अ टाइप ऑफ दैट. यहाँ से आप फ्री में लाइव कर सकते हो. और भी सर्विसेज होती है, लाइक अगर आपके पास कोई सर्वर साइड प्रोग्रामिंग नहीं है, सिर्फ स्टैटिक UI है, देन यू कैन ऑल्सो यूज GitHub. GitHub भी आपको वेबसाइट लाइव करने के कुछ ऑप्शंस देता है भाई. ओके, ओके, नाउ एनीवन, एनी क्वेश्चंस? यहाँ तक कुछ भी पूछना भी किसी को तो बताओ. So just give me a confirmation if it is clear to you all, like till here. यहाँ तक clear है तो just give me a confirmation. So are elasticity and measured interrelated? Yeah, we can say that, क्योंकि elasticity में क्या होगा, जितना expand होगी चीजें उतना amount भी आपका increase हो जाएगा. Okay. क्योंकि देखो इलास्टिसिटी का ना मतलब बेस्ट एग्जांपल इज रबर बैंड. रबर बैंड में क्या होता है, इलास्टिसिटी का वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जितना आप उस पे प्रेशर डालने वाले हो उतना इसको एक्सपेंड कर सकते हो. जितना प्रेशर रिलीज करोगे उतना ही वो लूज हो जाएगा. लेकिन AWS तो फ्री में नहीं करेगा ना आपके लिए काम, यू हैव टू पे. तो वो उतना अमाउंट चार्ज करता रहेगा आपसे. डज वी नीड डेटा सेंटर टू स्टोर दी सर्वर ऑफ क्लाउड? हमें नहीं चाहिए. ओके, दिस इज द बेस्ट थिंग. डेटा सेंटर हमें नहीं चाहिए because cloud is already using data center at the back. पहले क्या होता था, आपको डेटा सेंटर लेना पड़ता था, लेकिन अभी क्लाउड है बीच में. क्लाउड भी तो पीछे डेटा सेंटर ही यूज करता है. आपको जो वर्चुअल मेमोरी नजर आती है वो कहीं तो फिजिकल है. बात समझ पा रहे हो आप मेरी? आपको जो मेमोरी मिलती है, जो वर्चुअल मेमोरी आपको दिखाई जाती है, वो कहीं तो फिजिकल है ना पीछे. अब हवा में थोड़ी ना एक कोई स्पेस क्रिएट हो गया होगा. सोचो, अब यही बोल रहे हैं ना क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड के कि आसमान में कोई अपने आप थोड़ी ना स्पेस क्रिएट हो गया है.
हाँ हमारे लिए है वो, हम उसको ऐसे देख सकते हैं, बट एट द बैक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डेटा सेंटर गोइंग ऑन, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक टॉपिक होता है हम लोग का वर्चुअलाइजेशन, उसमें आपको ये बात समझ आएगी। ओके ओके, आई थिंक वी कैन मूव नाउ। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं यहाँ से भी हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है, देखो। So to understand the types of cloud computing, just give me a second. Okay, so we are talking about the types of cloud computing. Okay, you have to divide the type of cloud computing into two different models. One is a deployment model, which is known as cloud deployment. Okay, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ? I can also write cloud deployment or I can write deployment models. Second thing is cloud services. So these are the two things that is cloud computing is divided into. अब cloud deployment further तीन तरह का होता है. One is a public cloud, one is a private cloud, and one is a hybrid cloud. If I talk about cloud services, then they are also of three types: IaaS, PaaS, SaaS. Okay. Now let us draw the lines. So first of all, cloud computing is of two types. Cloud deployment is of three types. Cloud services, you have three different types. Okay, so I hope it is clear to everyone till here. अभी इनके बारे में सिर्फ मैंने इनका नाम लिखा है. I'll be talking about each of them one by one. सबके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे. ये सब चीजें क्या है, किस तरीके से हम लोग इनके, अभी तो नाम लिखे हैं ना सिर्फ, तो बस इनका एक ओवरव्यू ले रहे हैं अभी हम, क्योंकि आगे चल के क्या करना है, इन्हीं टॉपिक्स को हमें बाकी जो अपना बचे हुए सेशन होंगे 4 दिन 5 दिन का, उस सब में हमें इन्हीं को पढ़ना है वन बाय वन. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक about the cloud deployment model. What is this cloud deployment model? क्या होता है कि हम लोगों के पास कुछ तीन तरह की जो सर्विस है, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड, जिसमें कि सबसे पहला आता है पब्लिक क्लाउड. सो द सर्विसेज आर स्टोर्ड ऑफ साइट एंड एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट. ओके, एंड इट कैन बी यूज्ड बाय जनरल पब्लिक. कोई क्यों, नाम ही क्या है, पब्लिक क्लाउड है, कोई भी यूज कर सकता है. सिंपली AWS, Microsoft Azure are the example of public cloud. Okay. सेकेंड वन इज द प्राइवेट क्लाउड. प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, जैसे कि आप लोग को चाहे तो मैं एग्जांपल भी लिख देता हूँ. सपोज इफ आई टॉक अबाउट द पब्लिक क्लाउड, देन यू हैव AWS, Azure. ओके, दीज आर द पब्लिक क्लाउड. प्राइवेट क्लाउड क्या होगा, द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है एक प्राइवेट क्लाउड को, और इट आउटसोर्स इट टू अ होस्टिंग कंपनी, है किसी होस्टिंग कंपनी को वो आउटसोर्स भी कर सकता है. तो ये जो सर्विसेज होती हैं, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, वो किसी प्राइवेट नेटवर्क पे मेंटेन किए जाते हैं. AWS also do the same thing as well as VMware. अगर आपने VMware का नाम सुना भी आप लोगों ने, the name of VMware. Have you guys heard about this thing? Yes, sir. Okay. Now the third thing is hybrid. Hybrid is which contains the functionality of public and private both. जो दोनों की functionality पे काम करता है. For example, अगर मैं एक example लूँ आप लोगों के सामने, one of the best example is of NASA. NASA क्या करता है, hybrid cloud computing use करता है. How?
वो क्या करता है, उसने अपने एक प्रोजेक्ट है उसका, अगर आपने नाम सुना है नेबुला, प्रोजेक्ट नेबुला सुना है किसी ने? It uses a basically private cloud for research and development. Okay, and in addition to public cloud to share data set with external partners and the public and all. तो इस तरीके से ये अपने पास 3 तरह के क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि बेसिकली हम लोगों के जो क्लाउड डिप्लॉयमेंट है वो बेसिक 3 होते हैं. मेजरली वी स्टडी अबाउट क्लाउड सर्विसेज. हम डिप्लॉयमेंट करते हैं लेकिन पढ़ते सर्विसेज के बारे में है ज्यादा, जिसमें कि 3 तरह की सर्विस होती है. सबसे पहली होती है आपकी IaaS, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. ओके, तो हमें आई का मतलब समझना है. सबसे यहाँ पर सिर्फ आई का मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो मैंने आपको बताया ना कि सर्वर को रेंट करना पड़ता है. या तो आप सर्वर खरीद लेते हो या सर्वर को रेंट करते हो फ्रॉम सम क्लाउड प्रोवाइडर. उसकी जगह आपको ये एक सर्विस मिलती है IaaS, जो कि एक वर्चुअल डेटा सेंटर, अगेन एक वर्ड आएगा. सो यूजर्स ऑफ IaaS कैन आउटसोर्स एंड बिल्ड अ वर्चुअल डेटा सेंटर ऑन द क्लाउड, जो कि हम करते हैं जनरली. ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा AWS का EC2. ओके, EC2 AWS तो Amazon वेब सर्विस है. EC क्या होता है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड. EC2 का मतलब क्या होता है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड. तो ये हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हम लोगों को. दूसरी चीज आती है आप लोगों की PaaS, जिसका मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. तो P का मतलब क्या है यहाँ पर, प्लेटफॉर्म. और अभी अभी आप लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था किसका, हिरोकू दिखाया था भाई अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में. हिरोकू क्या था, दैट वाज अ PaaS. तो इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं. गूगल ऐप इंजन. तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट डिप्लॉय योर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन एनी प्रोग्रामिंग. कोई भी प्रोग्रामिंग आप यूज कर रहे हो, उसी प्रोग्रामिंग का सर्वर आपको मिल जाएगा. दैट इज PaaS. वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वहां पर अपनी वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने का और डिप्लॉय करने का. ओके, तो जब भी PaaS की बात करेंगे आप, तो यू आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट एंड द डिप्लॉयमेंट. इसका एग्जांपल होता है AWS इलास्टिक बीन स्टॉक, EBS. फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, इतनी जगह नहीं है. सो दैट इज इलास्टिक बीन स्टॉक, पढ़ेंगे आगे चल के. एंड फाइनली वी हैव SaaS, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. और इफ आई टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो बेसिकली क्या होता है, जो क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं वो आपकी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं. ओके, बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन, कि कितना आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, मंथली लिया हुआ है, ईयरली लिया हुआ है. क्योंकि जैसे अभी जो एग्जांपल था GoDaddy का, ये भी मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शंस देते हैं. ओके, देयर क्लाइंट मेंटेन्स द कंट्रोल ऑफ अ सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट बट डज नॉट मेंटेन एनी इक्विपमेंट, जैसे कि AWS खुद है. या फिर आपको और भी एग्जांपल्स दूं मैं, तो गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट 365. अगर आपने भाई माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन सर्विसेज यूज की है, तो आप आसानी से इस बात को समझ सकते हो. इफ आई शो यू अ लाइव एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, क्योंकि क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के तो सॉफ्टवेयर आते हैं ना, पावर पॉइंट आता है आपके पास, हर तरह का सॉफ्टवेयर आता है. बट उन्हीं सॉफ्टवेयर को आप एज अ सर्विस भी यूज कर सकते हो. लेट मी शो. जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, वन ड्राइव पर आप लॉग इन कर सकते हो अपने, और यहाँ जाकर हम साइन इन करते हैं. ओके, नाउ आई कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ फाइल. अगर मुझे यहाँ से क्या क्रिएट करना है, ये देखो, आउटलुक, वन ड्राइव, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, वन नोट, जितनी भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, वो सब क्लाउड पे अवेलेबल है. सो आई डोंट हैव टू इंस्टॉल एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. ओके, एम आई क्लियर गाइस? बात समझ आ गई आप लोगों को? ये भी बाकी इनके बारे में हम और डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे. एवरीवन प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन इफ इट इज क्लियर. ये आपको टाइप्स अगर क्लियर है तो एक बार मेरे को कंफर्मेशन दो.
ओके तो धीरे धीरे ना अभी क्या है, हम लोग को बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करना है. वी हैव टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आईएएस, पास एंड सैस. इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो करेंगे धीरे धीरे, सब कुछ कवर होता चला जाएगा. नाउ there is a basic thing I want to discuss with all of you, that is the basic history of AWS. अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं AWS की, सिर्फ AWS, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्लाउड. क्लाउड की हिस्ट्री की बात करने जाओगे तो लाइक 1990s में क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे पास, ठीक है. और धीरे धीरे ईयर ओवर ईयर 80% आज के रेट में जो मार्केट है वो ग्रो कर चुका है हमारा with reference to the cloud computing. So I'm not talking about the exact history of cloud computing. I'm just talking about the history of simple AWS. तो AWS के साथ क्या था, AWS को फर्स्ट टाइम 2002 में लॉन्च किया गया था. ओके इसके बाद क्या हुआ, इन 2002 के बाद 2006 के अंदर AWS ने अपने क्लाउड प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था. ओके तो आई विल राइट दिस थिंग पेस्ट हियर. इन 2006 AWS क्लाउड प्रोडक्ट्स पर लॉन्च. ओके तो दो चीजें हो गई, पहले 2002 में ये हुआ, 6 में हुआ. इसके बाद तक ना क्या हो रहा था, क्लाउड की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट या डिमांड नहीं बढ़ रही थी. मतलब 2002 में सोचो, फिर 2006, सीधा 4 साल का गया. और आज की रेट में अपडेशंस कितनी जल्दी जल्दी आती हैं, लेकिन 2002 से 2006 तक गए, 4 साल का गया. फिर 2006 के बाद 2012 में आते हैं सीधा. AWS का फर्स्ट कस्टमर इवेंट हुआ था तब. AWS had its first customer event. यानी कि फर्स्ट टाइम इसने पब्लिकली बता दिया कि जी दिस इज AWS रेडी टू यूज. उसके बाद 2015 तक, अब मैं इन 2015 लिख रहा हूं, बट इट मींस टिल 2015 AWS एक बिलियनियर जैसी चीज बन चुका था. ओके Amazon ने इतना कमा लिया था इन 3 सालों में जितना उसने पिछले 12 साल में नहीं कमाया था. ओके तो मैं यहां से लिख सकता हूँ AWS अचीव्ड billions of dollars. ओके जी. तो फिर 2016, 2019 ऐसे करके धीरे 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 बढ़ता चला गया. और आज की रेट में इसकी 100 से भी ज्यादा क्लाउड सर्विसेज हैं बाय 2021. ओके मतलब 2019 या 18-19 के अराउंड ही इसकी 100 से ज्यादा सर्विसेज हो चुकी थी. अभी तो शायद और भी ज्यादा होंगी. ओके so this is a basic history of cloud. I hope it is also clear to everyone. ये भी सब लोग को बेसिक थोड़ा theoretical knowledge था, ठीक है. अब चलते हैं एक बहुत important part की तरफ, that is life cycle of cloud computing. क्लाउड कंप्यूटिंग की लाइफ साइकिल क्या होती है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो लोगों को नहीं पता होता या नहीं पढ़ते. जिसके बारे में क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा ना डे वन से लोग सोचते हैं AWS पे चलो अकाउंट बनाते हैं, EC2 सीख लेते हैं, वेबसाइट बिल्ड करना, डिप्लॉय करना सीख लेते हैं. ऐसा नहीं करना आपने कभी भी. फर्स्ट अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल, कंप्लीट उसका एक नॉलेज गैदर करो अच्छे से, देन मूव फॉरवर्ड. तो हियर आई विल सिंपली राइट लाइफ cycle of cloud computing solution. क्या होता है अगर हम लाइफ साइकिल की बात करना शुरू करते हैं, the very first thing is you need some sort of a objective. सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना होता है, the objective or the purpose for what you want to use the cloud computing. क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का नाम सुना है, SDLC? Anyone heard about that? Yes, sir. SDLC की पहला फेज क्या होता है? Communication. दूसरा फेज? Planning. अब जो कम्युनिकेशन फेज है उसमें क्या होता है?
सर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। एग्जैक्टली कि भाई यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है जो समझना है। ओके, द फर्स्ट थिंग ऑफ एनी लाइफ साइकिल, ये खाली मैं इसकी बात नहीं कर रहा क्लाउड की या AWS की, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी लाइफ साइकिल इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हो या किसी की भी हो। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना होता है, व्हाई आई नीड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑल। ओके, सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस एंड ऑल, और कि किस तरह की सर्विसेज यूज करनी पड़ेंगी, ये सब। Second thing is you have to identify the hardware. Identify the hardware. This is the second phase of your life cycle. हार्डवेयर डिफाइन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आपको एक ऑब्जेक्टिव समझ आता है, जब आपको एक रिक्वायरमेंट समझ आती है, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है, कितना छोटा सॉफ्टवेयर है। उसी के बेसिस पे आई नीड अ हार्डवेयर। अब अगर आपको एक हार्डवेयर चाहिए तो उसके लिए Amazon आपको, AWS आपको क्या क्या देता है? EC2, बट EC2 के अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे कि लैम्डा, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, दैट इज ECS। Okay, so the first thing is objective and a purpose and all. Second thing is you have to identify the hardware. Hardware क्या हो सकता है भी आपका? कोई भी एक हो सकता है। EC2 could be there, Lambda could be there, or Elastic Container Service could be there. Okay. Now, when we talk about the third phase of your life cycle, that is simply define the storage. अब जब आपको हार्डवेयर का पता चल चुका है कि कितना बड़ा हार्डवेयर चाहिए, कितना छोटा हार्डवेयर चाहिए, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टोरेज, कितनी स्टोरेज की जरूरत पड़ने वाली है, कितना बैकअप चाहिए। ओके, सो यू हैव टू चूज अ स्टोरेज सर्विस वेयर यू आर गोइंग टू बैकअप एंड स्टोर योर डेटा ओवर द इंटरनेट। तो उसके लिए AWS आपको क्या प्रोवाइड करता है? S3, EFS, ग्लेशियर। ओके, तो करेंगे इन सब चीजों के बारे में भी धीरे धीरे डिस्कशन हम लोग। ये होता है हम लोग का थर्ड स्टेप, कि अब आपको स्टोरेज का पता चल चुका है। नाउ द फोर्थ स्टेप इज यू हैव टू डिफाइन द नेटवर्क, किस नेटवर्क पे आप उसको डिलीवर करना चाहते हो। सो आई विल सिंपली राइट डिफाइन नेटवर्क। और जब डिफाइन नेटवर्क की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट VPC, राउट S3 और डायरेक्ट कनेक्ट। ये मैं इसीलिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ना सर्विसेज के नाम, क्योंकि इससे बेनिफिट क्या होगा, Amazon की सर्विसेज इतनी ज्यादा है ना, याद नहीं रहती कि कौन सी सर्विस को किस चीज के लिए यूज करना है। सो मैंने इसीलिए क्या किया, एक लाइफ साइकिल लिया आप लोगों के लिए। दिस इज द लाइफ साइकिल। उसमें मैं आइडेंटिफाई करता जाऊंगा कि किस जगह पर किस चीज की जरूरत पड़ती है। So when we talk about defining a network, so basically that securely deliver data or whatever the audio, video, documents, whatever you have with low latency and high transfer speed. ये हम लोगों के लिए जरूरी है। Now the next term, that is fifth one, is to define the security. अब नेटवर्क मिल जाता है तो नेटवर्क पे क्या चाहिए? नेटवर्क पे सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी कौन देता है नेटवर्क पे? IAM। ओके, तो IAM एक पॉपुलर हमारे पास AWS का टर्म है, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। नाम से ही समझ आता है ना, आइडेंटिटी को एक्सेस करना। यू आर गोइंग टू एक्सेस द आइडेंटिटी समथिंग। ओके, या फिर इसके अलावा एक होता है KMS और देयर इज कॉग्निटो। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आगे और भी है। ठीक है जी, दिस इज द सिक्योरिटी पैरामीटर्स। दीज आर दी, लाइक यू हैव टू सेट अप योर सिक्योरिटी सर्विसेज which are going to enable services for your users for the authentication or limiting access to a certain set of user on your AWS resources, ताकि आपको पता रहे कि AWS resources को कितना यूटिलाइज करवाना है। ठीक है ना, ये भी तो एक टेक्निक है जो आपको सीखनी है।
कि भाई ऐसा ना हो ना कि, क्योंकि क्या होता है AWS में पता है आपको मिनट में लाखों का बिल आ जाता है अगर आप उसको अच्छे से मेंटेन या यूज ना करें तो इसीलिए बहुत ध्यान से आपको इस सर्विसेज को यूज करना है. Now the next term is, after defining the security, we define the management process and tool. Management processes and tools. Okay, management processes and tools की बात करें तो we have CloudWatch, or there is a auto scaling, there is cloud formation. तो ये चीजें होती हैं जो कि आपके जो कंप्लीट एक आपने प्रोसेस बनाया उसको मैनेज करने के लिए. सो यू विल बी हैविंग अ कंप्लीट कंट्रोल ऑन योर क्लाउड एनवायरनमेंट by defining any of the management tool or process. Okay, after that, on the 7th number, we have to test the process कि इतना जो किया गया है उसको टेस्ट किया जाए. So we have to test the process, and to test the process we have services like CodeStar. There is a code build and there is a code pipeline. Okay, so these are the kind of services that are generally used to test the processes. So you have to verify the process using AWS developer tools where you can build, test and deploy your code quickly. Okay, now comes the final thing, that is analytics. And what is analytics? You have to analyze and visualize your data by using some analyzing services, something known as Athena, EMR, Cloud Search. Okay, so these are the services that this is the complete life cycle of your cloud. ओके, तो अभी क्लाउड की जितनी भी मैंने बातें लिखी हैं तो इंग्लिश में लिखा है ना भाई मैंने नॉर्मल की क्या क्या करना होता है, लेकिन जब एग्जैक्टली आप इसको करने जाते हो देन यू गेट टू अंडरस्टैंड कि कितनी ऐसी बातें हैं जो इन सब के साथ रिलेट कर पाओगे आप. समझ आ गया भी आप सब लोग को व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग थिंग. क्योंकि देखो मैंने पहले ही बताया लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करते. क्या करते हैं डे वन से क्या पढ़ लेते हैं, क्लाउड पढ़ लिया, AWS पढ़ना शुरू कर दिया, AWS पे अकाउंट बना लिया, काम करना शुरू कर दिया. बट बिफोर दैट अंडरस्टैंड कि भाई आपको पहले एक प्रोसेस पता है, यू नो अ प्रोसेस कि मुझे पहले ये करना चाहिए, अब मुझे ये करना चाहिए, अब मुझे ये करना चाहिए. मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दी है कि अब आप किस डायरेक्शन में चीजों को ढूंढना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो. ओके, So, is it clear everyone? Guys, please give me a confirmation. अगर आप लोगों को clear है भी यहाँ तक तो. Okay. तो कुछ और सर्विसेज के बारे में बताऊं मैं आप लोगों को, थोड़ा और मतलब इंटरेस्ट तभी आएगा क्योंकि ना क्लाउड के साथ प्रॉब्लम क्या है, इट्स कंप्लीटली थ्योरेटिकल. ठीक है ना, अभी आपने देखा भाई मैंने बता दिया क्लाउड के बारे में सब कुछ, और ये क्या है कंप्लीटली थ्योरेटिकल नॉलेज है. ठीक है, तो काम करते हैं जितना मैंने वहां पे लिखा हुआ था उसको मैं क्विक यहाँ पर आकर लिख देता हूँ कि किस किस चीज के लिए क्या क्या सर्विसेज है. जैसे कि अगर मैंने आपसे बात की, लेट मी राइट हियर दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लाउड. तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा था भाई, हार्डवेयर. हार्डवेयर के लिए मैंने आपको क्या बताया, EC2, लैम्डा,
and there is a elastic container service. Okay, this is the first thing. This was the first thing. इसके बाद हमने बात की थी स्टोरेज के बारे में. Now, what was the storage things? There was S3. You have EFS. There is Glacier. अगेन इनके बारे में कुछ और भी चीजें बताऊंगा आपको. जैसे स्टोरेज की ही अगर मैं बात करूं, ग्लेशियर हो गया, EFS हो गया. एक होता है आपका स्टोरेज गेटवे, Amazon स्टोरेज, AWS स्टोरेज गेटवे. ओके, एक है आपका EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर. ओके, तो ऐसे यही, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होते हैं, और भी होते हैं. ओके, ठीक है जी. स्टोरेज के बाद देयर वाज द टर्म नेटवर्क. सो इफ आई टॉक अबाउट द नेटवर्क टर्म, तो नेटवर्क के बारे में क्या क्या बताया था मैंने आप लोगों को. VPC, राउट S3, एंड देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्ट. देन यू हैव सिक्योरिटी. इसके बाद सिक्योरिटी की बात करते हैं. एक्चुअली सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सबसे ज्यादा जरूरी सिक्योरिटी है. और सिक्योरिटी के लिए आपको अभी तक मैंने एक IAM के बारे में बोला था, दैट इज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. एक होता है इंस्पेक्टर. ओके, एक होता है आपके पास WAF, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल. एक होता है KMS, की मैनेजमेंट सर्विस. देयर इज ऑर्गेनाइजेशंस. देन देयर इज शील्ड. ये सब क्या है? ये सब सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं. ये सिक्योरिटी डिफाइन करने के लिए आप ये सब यूज कर सकते हो. इसके अलावा और भी 6-7 तरीके के होते हैं. गार्ड ड्यूटी, और एक होता है हम लोग का क्लाउड डायरेक्टरी. ये सब अलग अलग टाइप्स के. अब मैं आपसे बात करूं मैनेजमेंट एंड प्रोसेस टूल के बारे में. अगर इसके लिए मैंने आपको बताया था क्लाउड वॉच, ऑटो स्केलिंग, क्लाउड फॉर्मेशन. इसके बाद मैंने आपको बताया था टेस्टिंग करने के लिए क्या चाहिए. टेस्टिंग के लिए आपको चाहिए होगा कोड स्टार, could be code build, and it could be code pipeline. Okay, यहाँ तक समझ आया अभी आप सब लोगों को? Any questions still here? ओके, ग्रेट. और भी सर्विसेज के बारे में बता दूं, थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूँ. जैसे टेस्टिंग के बाद मैंने आपको वो फाइनल और लिख देता हूँ वहां पर, तो ये हमारी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी. दैट वाज द लाइफ साइकिल. एक एनालिटिक्स था फाइनली, जिसमें कि एथीना के बारे में बताया था मैंने आपको, EMR के बारे में बताया था, और क्लाउड सर्च के बारे में बताया था. ये कुछ चीजें, ठीक है. लेकिन अब इसके अलावा और अगर मैं बात करूँ आपसे, इसके अलावा इलास्टिक सर्च होती है आपके पास. फॉर एनालिटिक्स यू हैव इलास्टिक सर्च. अच्छा, EMR को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक मैप रिड्यूस, जो कि अलग चीज है, और इलास्टिक सर्च एक अलग चीज है. ओके, और क्लाउड सर्च और इलास्टिक सर्च सिमिलर होता है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा डिफरेंस होता है. ठीक है. इसके अलावा इफ यू हैव माइट बी हर्ड अबाउट, या नहीं भी सुना कोई बात नहीं, किनेसिस. ये सब हम लोगों की एनालिटिक्स की टर्म्स है. ओके, एंड ओके, तो ये सब हो गया हम लोगों का. अच्छा, अब इसके अलावा मैं कुछ और टूल्स की आप लोगों से बात करता हूँ, जो सर्विसेज है जो ये प्रोवाइड करता है. डेटाबेस सर्विसेज. ओके, डेटाबेस सर्विसेज की बात करें तो डेटाबेस सर्विसेज में आपको प्रोवाइड करता है RDS, DynamoDB, इलास्टिक कैशे, Neptune. So these are the kind of services of databases. और भी Redshift बहुत पॉपुलर है. Okay, these are the database services. मैनेजमेंट सर्विसेज मैंने आपको बता दिया, क्लाउड वॉच एंड ऑल. फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए सर्विसेज अवेलेबल है. इसके अलावा एप्लीकेशन सर्विसेज अवेलेबल है. डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट के लिए सर्विसेज है. डेवलपर टूल्स के लिए मैं बता चुका हूँ. मोबाइल के लिए है
हर चीज के लिए सर्विसेज है। अब पता कैसे चलेगा, कहाँ लिखोगे इन सबको? कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। विल बी मूविंग टू दी AWS। मैं कुछ बेसिक आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आकर। यहाँ पर चलते हैं। सो दिस इज दी AWS। हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और AWS पे जाकर सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। लेकिन अकाउंट जब आप क्रिएट करते हो तो आपको ध्यान रखना है उसमें कार्ड डिटेल्स एंड ऑल भी मांगता है, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं कि भाई कुछ पे करना है, वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग। कंसोल पे जाकर इसके साइन इन करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे ना तो आपको ना ऑप्शन सब नजर आने शुरू हो जाते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मिलती है सर्विसेज। जितनी भी मैं सर्विसेज के नाम लिख रहा हूँ ना, अब मैं सोचूं क्या मैं सारी सर्विसेज लिख सकता हूँ भाई? डू यू थिंक ऐसा कोई इंसान होगा इस दुनिया में जिसको सारी सर्विसेज आती होंगी? बताओ। या आप ऐसी कर सकते हो? इतनी सारी सर्विसेज आप कर सकते हो? सोचो। तो इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल भाई, इतना करते करते पागल हो जाओगे। ओके तो इसीलिए भी आप लोगों को बातें समझनी है जो आपके रिलेटेड है। उतना नॉलेज चाहिए जो मेरे लिए मस्ट हैव है। ओके व्हाट इज कुबरनेटिस? कुबरनेटिस क्या होता है यार कि ऐसा समझ के चलो, कंटेनर समझते हो आप? कंटेनर जैसे डोकर एक कंटेनर होता है, डोकर समझते हो? तो ये क्या होते हैं, कुछ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि आपके वर्कलोड्स को, सर्विसेज को हैंडल करने का काम करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं। तो कंटेनर्स की तरह होते हैं ये, जिससे कि आप अपने एप्लीकेशंस का जो डिप्लॉयमेंट है उसको इजीली मैनेज कर सकते हो। तो ऐसी ऐसी कुछ सर्विसेज होती हैं। तो कभी अगर पढ़ना चाहते हो तो ऐसे पढ़ना, दोनों के बारे में पढ़ना, कुबरनेटिस वर्सेस डॉकर, ऐसे पढ़ना कभी, तो ज्यादा नॉलेज मिलेगी। खाली अगर आप कुबरनेटिस के बारे में पढ़ोगे तो एक चीज समझ आएगी, बट इफ यू ट्राई टू लर्न दी डिफरेंस तो ज्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो पढ़ना इसके बारे में जरूर भाई आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये सब ना आज की डेट में भी ऐसी बातें हैं लोग ज्यादा जानते नहीं है। जनरली ये सारी बातें ना आप लोगों को सुनने को मिलेंगी IT इंडस्ट्री में, कॉलेजेस में बात नहीं करते इनके बारे में, ठीक है। तो ये गूगल का ही क्रिएशन है भाई एक। So it's a container orchestration system for automating computer application deployment, scaling and management। ये सारी ऐसी चीजें करने का काम है। ओके हाँ जी, तो आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया कि देखो इतनी तरह की सर्विसेज होती हैं। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल टू लर्न ऑल दीज सर्विसेज। इन सभी सर्विसेज को रटना आप लोगों के लिए मतलब फायदा ही नहीं है। क्यों रटना है? डोंट हैव टू लर्न दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आपको पता होना चाहिए काम AWS पे करते कैसे, वो ज्यादा जरूरी है। ओके ठीक है जी, फाइनली अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों को क्या क्या पता चल चुका है। नाउ वी नो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, नाउ वी नो व्हाट इज AWS। AWS की कुछ कुछ सर्विसेज के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। इट्स नॉट लाइक खत्म हो गई है, और भी बहुत बहुत सारी सर्विसेज हैं, वो आप यहाँ से देख ही सकते हो। ओके So there is a lot of things to learn, but ऐसा नहीं है कि सब कुछ रटना है भी हमने, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं करना होगा। Now so this was the finally basic introduction for the cloud। अब हमें बेसिक तो समझ आ गया क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। देखो we are going to talk about the architecture of cloud environment। Okay, so we are going to talk about the architecture of cloud environment, जिसका मतलब क्या है कि जो क्लाउड है वो एट द बैक उसका आर्किटेक्चर है क्या, कैसा दिखता है, उसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। तो इसके लिए भाई हम लोगों को एक छोटा सा डायग्राम बिल्ड करना है। तो जो क्लाउड होता है ना भाई, तो पीछे होता डेटा सेंटर ही है। दैट इज इटसेल्फ अ डेटा सेंटर एट द बैक। ओके, और डेटा सेंटर के क्या होते हैं, मल्टीपल फिजिकल सर्वर्स होते हैं। लेट मी शो। सबसे पहले ऐसा सोचो, एक डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर में क्या है, डेटा सेंटर में हम लोगों के पास ये सर्वर्स है। दीज आर द फिजिकल सर्वर्स।
ओके, नाउ इफ दीज आर द फिजिकल सर्वर्स, तो अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, देयर इज अ लेयर नोन एज वर्चुअलाइजेशन। इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन। और इसके ऊपर क्या होते हैं, वर्चुअलाइजेशन के ऊपर आपके वर्चुअल सर्वर्स होते हैं। These are the virtual servers. तो मैं वन बाय वन लिख भी देता हूँ भाई यहाँ पर कि these are the first of all this is the virtualization. These are the data center. Okay. और उन सब के ऊपर ये क्या है हम लोगों के, these are the लाइक वर्चुअल सर्वर्स, ये हम लोग के लिए क्या है, वर्चुअल सर्वर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा सेंटर होता है। डेटा सेंटर के पास कुछ फिजिकल सर्वर होते हैं। उन फिजिकल सर्वर्स के ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट। ये जो वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट होता है, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इलास्टिसिटी थिंग, क्योंकि यही तो है जो पीछे इस डेटा सेंटर से बात कर रहा है। जितना आपने यूज करना है उतना आपने पे करना है, ऑन डिमांड, सेल्फ सर्विस, ये सब वर्चुअलाइजेशन मैनेज कर रहा है। और इस वर्चुअलाइजेशन के ऊपर कौन है, आपके वर्चुअल सर्वर्स। बात समझ आई आप लोगों को? अब वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, VMware, सिंपल। अगर आपने VMware यूज किया है, नहीं किया तो मैं अभी उसका एग्जांपल दे देता हूँ। नहीं तो वर्चुअल बॉक्स, क्या भी आप में से किसी ने वर्चुअल बॉक्स जैसा कुछ यूज या नहीं किया है? Yes, sir. So let me just give you a quick example of it. देखो, ये हम लोग का ओरेकल का VM वर्चुअल बॉक्स। तो ओरेकल का एक वर्चुअल बॉक्स आता है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने एक मशीन में दो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कर रहा हूँ बेसिकली। एक OS तो हो गया मेरा जो विंडोज है बाय डिफॉल्ट, और एक हो गया मेरे पास ये वर्चुअल बॉक्स। अब देखो नाम ही क्या है, वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ से क्या होता है कि भाई आपकी जो भी, मैंने सपोज इसमें उबंटू इंस्टॉल किया हुआ है, लाइनेक्स इंस्टॉल किया हुआ है, मैं इसकी सेटिंग्स में जाकर इसको कितना भी मैनेज कर सकता हूँ कि मेरे को इसकी स्टोरेज कम ज़्यादा मैनेज करनी है, इसकी सिस्टम इन्फॉर्मेशन में चलते हैं तो मैं यहाँ से इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, कम ज़्यादा कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। इट्स अप टू मी, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है, आपकी वर्चुअल मेमोरी है। एक्सेस तो आपकी फिजिकल ही होगी, ठीक है। इसको स्टार्ट कर देते हो तो क्या होता है भाई, आपके एक वर्चुअल दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ मैं अपनी लोकल मशीन में करने की जगह कहाँ पर करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू द सेम थिंग ऑन क्लाउड। यही चीज मैं क्लाउड पे भी करना चाहता हूँ। ओके, तो इसको 1 मिनट लगता है स्टार्ट होने में। ठीक है, इसको स्टार्ट होने देते हैं, इसका कुछ करना तो है नहीं हमें, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए ही बताना था कि भाई दिस इज द थिंग दैट वी वाज टॉकिंग अबाउट। ये वर्चुअलाइजेशन ये है, ठीक है। आपके सामने एक वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पीछे जाकर मेरी ही फिजिकल मेमोरी को यूज करता है। ओके, तो बस इतना मेरे को आपको एग्जांपल दिखाना था। बाकी अब डिपेंड करता है भाई आप इसको कितना एक्सपेंड करना चाहते हो, कम ज्यादा करना चाहते हो, स्केल अप स्केल डाउन, इट्स अप टू, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात की अभी इसके
आर्किटेक्चर के बारे में। सो इज द आर्किटेक्चर क्लियर? समझ आया आप लोग? सिंपल था आर्किटेक्चर, मुश्किल तो नहीं था भाई इसका। Sir, can you please show the diagram again? Simple diagram है बिल्कुल। At the lowest level we have data center, above that we have virtualization environment, and above that we have virtual server. Okay. Now let us move, आगे बढ़ते हैं। So this was the basic architecture. अब आर्किटेक्चर के बाद हम बात करते हैं कि how why AWS is why AWS become so successful, इतना सक्सेसफुल ये कैसे बना। कुछ तो फीचर्स ऐसे हैं ना जिनकी अभी तक हमने बात की, लेकिन अब मैं इसके कुछ 6 से 7 पॉइंट है जो आप लोगों के सामने लिख दे रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिक्योरिटी, द लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय AWS। एंड टू एंड सिक्योरिटी पढ़ेंगे ऑब्वियसली हम, क्या होती है, स्टोरेज और सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करता है ये। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन यू टू सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, database, any other service required as per your requirement. That's what flexibility means. Scalable, scalable मैं बहुत बार बता चुका हूँ, you can scale up or down anytime, depends on your requirement. Cost saving, how it is saving your cost? Because you just have to pay for the time that you are using on it. जितना देर के लिए आप किसी सर्विस को यूज कर रहे हो, सिर्फ उतना देर के लिए मुझे उसको पे करना है, या जितनी मुझे कंप्यूटेशन पावर चाहिए, जितनी मुझे स्टोरेज चाहिए, उसके लिए मुझे पे करना है। ओके। शेड्यूलिंग, इट मींस यहां से आप क्या करते हो कि अपनी AWS की किसी भी सर्विस को बहुत बहुत इजीली कितनी भी बार स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, या पहले ही प्री डिटरमाइन उसको शेड्यूल कर सकते हो कि ये शेड्यूल हो जा, मतलब आपने क्या किया, जैसे अलार्म शेड्यूल करते हो भाई आप कि 4 बजे अलार्म बज जाएगा, ऐसा कुछ होता है, ऐसे ही मैं शेड्यूल कर सकता हूँ कि मेरी ये सर्विस इस टाइम पर इस जगह पर स्टार्ट हो जानी चाहिए। रिलायबिलिटी, बहुत रिलायबल है बिकॉज इट हैज मल्टीपल बैकअप। इसके पास बहुत सारे मल्टीपल बैकअप होते हैं, वो भी मल्टीपल फिजिकल लोकेशंस पे। सब कुछ वर्चुअल नहीं देता ये, मतलब आपको तो वर्चुअली मिल रहा है, लेकिन बैकएंड पे क्या हो रहा है, बैकएंड पे तो ये मल्टीपल फिजिकल लोकेशंस है जहां पर बैकअप होते हैं हर चीज के। ओके, तो AWS की जो सर्विसेज है वो डोमेन्स में डिवाइडेड है, कंप्यूटेशन, स्टोरेज, डेटाबेस, माइग्रेशन, एनालिटिक्स, सिक्योरिटी, दीज काइंड ऑफ सर्विसेज। और इन सर्विसेज को मैंने आपको ऑलरेडी दिखा ही दिया था भाई यहाँ पर, अगर आप इसको देखना चाहते हो सो जस्ट क्लिक हियर, दीज आर द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई अमेज़न ये सारी सर्विसेज आपको दे रहा है। ओके ओके, वापस आते हैं। तो दिस वाज द थिंग आई वाज टॉकिंग कि लाइक हम लोगों को ये कुछ ऐसा मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर भाई टिल हियर, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका है ये सब। Any questions, any queries, anything you would like to ask? बाकी लोग भी एक बार मेरे को कंफर्मेशन देवे। Only 2 students has given me the confirmation, Yash and Shubham. What about others? Okay.
ओके ओके आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? मतलब सब कुछ समझ आ रहा है या सब कुछ ऊपर से जा रहा है? दो ही बातें हो सकती है, अभी क्वेश्चंस नहीं आते। Is it clear or it is all clear? Why so much different database service? Why so much different database service? मतलब कि इतने सारे databases क्यों हैं? यस सर। ये देखो, डेटाबेस सर्विस की अगर बात करें तो रियल टाइम में तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आप रियलिटी में देखने जाओगे तो इससे भी कहीं ज्यादा डेटाबेसेस हैं। ये तो AWS की सर्विसेज है जो AWS दे रहा है। सोचो, अगर मैं AWS के डेटाबेस सेक्शन पे चले हम। यस सर भाई, ओरेकल में तो मतलब ओरेकल में हाँ बोलो बोलो। उसका MySQL करके कुछ नाम याद नहीं आ रहा। तो उसने एक ही बनाया ना, रेडिस में जैसे मतलब रेडिट ने रेडिस बनाया, एक ही दो, ये 3 4 7 8 9 10 दे रहा है AWS। तो आप जब AWS की बात कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हो सिर्फ कि AWS इतने सारे क्यों दे रहा है? यस सर। यार ऑब्वियसली क्या होता है कि आपके जो डेटाबेसेस होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है रिलेशनल डेटाबेस, एक होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ये बात तो समझते हो? अगर मैं आपसे नॉर्मली बात करना शुरू करूं, लेकिन टेक्निकल डिफरेंस नहीं पता। हाँ मैं बताना शुरू करता हूँ। जैसे रिलेशनल डेटाबेस RDBMS उसको बोलते हैं, जिसमें डेटा हमारा टेबल्स की फॉर्म में होता है। टेबल्स की फॉर्म में, जैसे SQL में जितना भी डेटा होता है टेबल्स की फॉर्म में होता है कि भाई उसमें रो एंड कॉलम में, जैसे एक्सेल की फाइल्स होती है ना, कुछ इस तरीके से डेटा स्टोर होता है टेबल्स में। ठीक है, तो वो होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, एक ही डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकते हो और फिर एक टेबल दूसरी टेबल से रिलेटेड होती है। 2 टेबल, 3 टेबल, 4 टेबल, ऐसे करके मैं कितनी भी टेबल्स के बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रिलेशनल डेटाबेस, इसलिए उनको रिलेशनल बोलते हैं। नॉन रिलेशनल एक दूसरी कैटेगरी होती है डेटाबेसेस की। वो कहते हैं कि मेरे साथ ना टेबल्स बनाने की जरूरत नहीं है, जिसको हम नो एसक्यूएल डेटाबेसेस भी बोलते हैं, कि यू डोंट हैव टू क्रिएट दी टेबल्स। बिना टेबल क्रिएट किए भी आपका जो टास्क है, आपका जो ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सकता है। उनके अपने खुद के बेनिफिट्स हैं। तो मैं अगर कभी आप डेटाबेस का सेशन अटेंड करोगे मेरा, मैं आपको बताऊंगा कितने तरह के डेटाबेसेस होते हैं, उनके सबके अपने बेनिफिट्स हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही डेटाबेस है वही चल रहा है, उसी पे सब कुछ आप डेवलपमेंट कर सकते हो या डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। क्या होता है, देखो विद टाइम सोचो, टाइम के साथ साथ डेटाबेसेस चेंज होते रहते हैं। जैसे एसक्यूएल बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन अभी एसक्यूएल का मार्केट कम हो गया, फिर बढ़ रहा है धीरे धीरे। बीच में किसका मार्केट ज्यादा हो गया? MongoDB। सुना है आपने नाम MongoDB का? तो MongoDB एक बहुत पॉपुलर नो एसक्यूएल डेटाबेस है। ये कब आया? ये 2009-10 के बाद आया है। और इतना पॉपुलर क्यों हो गया? क्योंकि कहता है टेबल्स नहीं बनानी, नो एसक्यूएल, टेबल्स नहीं बनानी, क्वेरीज नहीं लिखनी, मेथड्स पे काम करना है, बड़े आसान से मेथड्स बना दिए। तो उसकी अपनी एक नीड आई होगी, उसका अपना एक डोमेन आया होगा कि दैट्स व्हाई वी नीड नो एसक्यूएल डेटाबेस। मैं चलो एक एग्जांपल रिलेट करके बताता हूँ। एक बात समझना, आपको खुद मेरी बात समझ आएगी कि क्यों इतने सारे डेटाबेसेस चाहिए होते हैं। क्योंकि हर डेटाबेस में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। सपोज एक एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल में क्या होती है? टेबल्स होती हैं। टेबल में क्या होता है? कॉलम होते हैं, रोज होती हैं। मान लो आपसे एक फॉर्म फिल कराया रजिस्ट्रेशन का मैंने, उसमें आपने अपना नेम एंटर किया, ईमेल आईडी एंटर की है, पासवर्ड एंटर किया, एज है, मोबाइल नंबर है और एड्रेस है। ठीक है, जब आप एक फॉर्म फिल करते हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ पैरामीटर्स के आगे ना स्टार लगा होता है। इसका मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड या प्राइमरी? कंपल्सरी कि दीज आर रिक्वायर्ड, दीज आर मस्ट हैव। तो ऐसे करके आपको एक फॉर्म फिल करने को दिया जाता है कि भाई ये मैंडेटरी है, फिल करना जरूरी है। तो आपने अपना नेम लिखना शुरू किया, भाई आपको पता था मैंडेटरी है, नाम लिख दिया, ईमेल लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया। आपने देखा एज के आगे स्टार नहीं लगा, इट मींस इट इज ऑप्शनल, आपने छोड़ दिया। आपने फोन नंबर लिखा, एड्रेस छोड़ दिया। नेक्स्ट यूजर आया, उसने नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, एज भी लिख दिया, नेम, फोन सब लिख दिया उसने। एक और यूजर आया, उसने भी सब कुछ लिख दिया। फिर एक यूजर आया, उसने देखा ये ऑप्शनल है, इसने ये नहीं लिखा, ये लिख दिया। अब एक बात सोचो, जहां पर वैल्यूज है, जहां डेटा है, वहां तो मैं कुछ ना कुछ एंट्री कर दूंगा। जहां डेटा नहीं है वहां क्या रखोगे? वहां रखते हैं हम
ये रखते हैं, यस रखना पड़ेगा ना, खाली थोड़ी छोड़ सकते हैं, कुछ तो जाएगा। अगर वैल्यू जाएगी तो वैल्यू रखेंगे, वैल्यू नहीं जाएगी तो नल रखना पड़ेगा। सोचो, ये होता है आपका एक तरह का एसक्यूएल के अंदर कि भाई अगर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज टेबल बनाओगे तो हर जगह कुछ ना कुछ डेटा चाहिए, जहां डेटा नहीं होगा वहां नल होगा, मतलब कि गार्बेज, वेस्ट। इस वैल्यू का मेरा कोई काम ही नहीं, मैं क्या करूं इस वैल्यू में, मेरे को क्यों क्रिएट करके दिया इसने वैल्यू, ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन अब पता है क्या होता है, और इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब आज की डेट में देखो कैसा बनता है, अब टेबल नहीं बनती मोंगो डीबी में, कहता है नेम, जिसने नेम लिखना था लिख दिया, ईमेल आईडी, पासवर्ड, एज, फोन नंबर, एड्रेस। इस बंदे ने सब कुछ लिखा था तो सब कुछ आ गया। अब नेक्स्ट आया, उसने नेम लिखा क्योंकि मैंडेटरी था, ईमेल भी मैंडेटरी था, पासवर्ड भी मैंडेटरी था, एज मैंडेटरी नहीं था, फोन मैंडेटरी था, दैट्स इट। फायदा देखा आपने क्या हुआ, फील्ड ही क्रिएट नहीं हुआ, एज और एड्रेस का फील्ड ही क्रिएट नहीं करेगा ये एक अलग टाइप का डेटाबेस हो गया। अब सोचो भाई मेरी रिक्वायरमेंट क्या बोल रही है कि भाई मुझे ऐसा कुछ यूज कर लेना चाहिए। आई बात समझ अब आपको ये? यस सर, स्टोरेज सेव हो गई। स्टोरेज सेव हो रही है, ऐसे ऐसे फीचर्स होते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, तब हम सोचते हैं कि अच्छा मुझे ये डेटाबेस की जगह ये यूज कर लेना चाहिए। तो मैंने आपको बताया ना, एक रिलेशनल है, फिर नॉन रिलेशनल है, फिर ऐसे करके हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ डेटाबेसेस हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का डेटाबेस यूज करना चाहते हो, कि मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह के डेटाबेस पे आकर सेटिस्फाई होती है। ठीक है, अब जैसे इलास्टिक कैशे यूज करता है Amazon, AWS कहता है इलास्टिक कैशे होता है मेरे पास। इलास्टिक कैशे एक ऐसा डेटाबेस इसने प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें कि आपको एक इन मेमोरी कैशे जैसी कोई चीज मिल रही है। इन मेमोरी कैशे समझते हो क्या होता है? सर मेमोरी के अंदर कैशे, मतलब कैशे, कैशे समझते हो कैशे क्या होता है? ये सर स्टोरेज होती है जिससे प्रोसेसर बहुत जल्दी एक्सेस कर लेता है। एग्जैक्टली। तो अब सोचो ये भी तो ऐसा ही कुछ दे रहा है आपको, कह रहा है मैं इलास्टिक कैशे नाम की चीज दे रहा हूँ, कहता है डेटा को कैशे में डाल दूंगा मैं। सोचो कितना फास्ट एक्सेस होगा। ये एक टाइप का डेटाबेस बना दिया इसने बस। तो इस तरह की बातें होती हैं। फिर एक डायनामो डीबी है जिसके एक फ्लेक्सिबल नोएसक्यूएल डेटाबेस होता है, बहुत फास्ट है। तो ये सारी बात होती है, हमें ध्यान रखना पड़ता है इन बातों का, तब हम आइडेंटिफाई करते हैं अच्छा दैट आई हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ डेटाबेस। ओके ओके। हाँ, और क्या क्वेश्चन था भाई? व्हाट आर आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ अवर सिस्टम फॉर AWS? यार AWS के लिए तो ब्राउजर चाहिए अच्छा सा, बस। ठीक है, आपके सिस्टम पे रिक्वायरमेंट डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है AWS पे। आपकी मशीन है 4 GB 8 GB रैम की, काफी है। i5 है, i7 है, काफी है। ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि बहुत हाई एक आपको सिस्टम चाहिए, हाई एंड सिस्टम नहीं चाहिए, क्योंकि हाई एंड सिस्टम तो हम बना रहे हैं AWS पे जाकर। ओके, तो आपको बहुत मिनिमल से रिक्वायरमेंट पे काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत हाई परफॉर्मेंस सिस्टम चाहिए। एनी सिमिलर सर्विस लाइक AWS फ्री ऑफ कॉस्ट? यार ऐसी सर्विसेज ना जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो सिर्फ ट्रायल बेस्ड होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको AWS का बताया, इसके अलावा Azure होता है। ये भी है कि हाँ जी इसको भी आप यूज कर सकते हो, बट कितना डिपेंड करता है। ऐसा लिख देता है Azure। तो भाई ये भी कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। देखो क्या होता है ना कि अगर हमारे पास और भी सर्विसेज हैं, डिजिटल ओशियन भी है। ठीक है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की कंपनी है। तो हर किसी के आपको अलग अलग फीचर्स मिलेंगे, कुछ चीजें फ्री मिलेंगी, कुछ चीजें पेड मिलेंगी। गूगल क्लाउड, उसको कैसे बोल सकते हो भाई आप? इसको क्या होगा, सर्च करते हैं फिर से। ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं। तो अब यार ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा कि सारी ही सर्विसेज आपको फ्री मिलने वाली हैं। ऑब्वियसली कुछ पेड भी मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है,
do we do disk partitioning for VirtualBox, or like if we want to run 2 OS? No, हमें नहीं करना, हमें डिस्क पार्टीशनिंग नहीं करनी होती, हमें सिर्फ कुछ मेमोरी एलोकेट करनी होती है अपने वर्चुअल बॉक्स को, ठीक है। उसके लिए आपको पार्टीशनिंग करने की जरूरत नहीं, ठीक है। Which is better, Azure or AWS? As Azure provides 600 plus services और AWS provide 200 plus services. चलो इस चीज को समझने के लिए गूगल ट्रेंड्स पे चलते हैं। गूगल ट्रेंड समझते हो क्या होता है? गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स पे बेसिकली आप ये देख सकते हो कि ज्यादातर लोग इस दुनिया में किस चीज को ट्रेंड कर रहे हैं, मतलब दुनिया में क्या ट्रेंड कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम लोगों को ये समझना है बहुत अच्छे से द डिफरेंसेस, तो गूगल इस पे जाकर अच्छे से आपको ना डिफरेंस पता चलता है कि भाई मेरे लिए क्या बेटर है, कि दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया किस चीज को ज्यादा फॉलो कर रही है। मैं यहाँ से देख सकता हूँ, ठीक है। हम यहाँ सर्च करते हैं AWS, अभी तो Amazon वेब सर्विसेज करके देख लेते हैं, ठीक है। ये डालकर देखते हैं तो Amazon वेब सर्विसेज का हमारे पास एक ग्राफ आ जाएगा पिछले 1 साल का, वो भी इंडिया का। हमें इंडिया का नहीं देखना, हमें वर्ल्ड वाइड देखना है, और वो भी पिछले 1 साल का ना देखकर पिछले 5 साल का देखते हैं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ AWS इन द लास्ट 5 ईयर, ठीक है। अब आपने देखा Azure का, माइक्रोसॉफ्ट Azure, ठीक है। इसके बाद आपने देखा गूगल क्लाउड, देख रहे हो आप? मतलब अभी मैंने कुछ ऐसे डिफरेंसेस बताए नहीं है, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही रैंडमली सर्च किया भी आप लोगों के सामने, एक ट्रेंड दिखाने के लिए कि भाई क्या ज्यादा लोग यूज करते हैं। देखो एक बात समझना, एक ना ऐसा होता है यार कि ज्यादातर जो लोग हैं वो यूजर फ्रेंडली जो चीजें होती है ना उनकी तरफ ज्यादा भागते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप इतना ज्यादा पॉपुलर इसीलिए क्योंकि बहुत यूजर फ्रेंडली है, आसान है चलाना। फेसबुक पे इतनी दुनिया इसीलिए है क्योंकि आसान है चलाना। जो भी एप्लीकेशन आसान होती है उस पर पूरी दुनिया बैठी मिलेगी आपको। सिमिलरली AWS आसान है एज कम्पेयर टू गूगल क्लाउड भी आसान है, ऐसा नहीं है, बट एज कम्पेयर टू एज्योर इफ आई टॉक अबाउट कि भाई एज्योर थोड़ा सा आसान नहीं है, उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। प्लस इसका जो प्राइस मॉडल है ना बड़ा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। लेकिन कंपेयर करोगे एज्योर को तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटीज वो प्रोवाइड नहीं करेगा आपको जितनी AWS करता है। तो ऐसा नहीं है यार कि कोई अगर सर्विसेज बहुत ज्यादा दे रहा है तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा ना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बस वही है AWS, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्वालिटी नहीं देता, देता है, बिल्कुल देता है, बट एज कंपेयर टू AWS उतनी अच्छी नहीं है। बाकी देखो अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो आप इनके फिर उस चीज की कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि भाई प्राइस वाइज में कंपेयर करना चाहता हूँ कि प्राइसिंग का क्या सिस्टम है, ठीक है ना, किसकी प्राइसिंग कम है, किसकी प्राइसिंग ज्यादा है। असली कंपैरिजंस तो वहां होते हैं। अभी तो मैंने आपको ऊपर से एक डिफरेंशिएशन बता दिया। AWS का जो साइज लिमिट होता है 5 टेराबाइट का होता है, एज्योर का थोड़ा सा कम होता है, 4.75 टेराबाइट होता है। तो ये भी है, ओके। और बताइए भाई, और कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं यहाँ तक? कुछ भी पूछना चाहते हो आप, जस्ट फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। ओके तो अभी देखो हम लोगों को यहाँ तक आज जितना भी हम लोगों ने नॉलेज लिया है ना, देखो है सब नॉलेज थ्योरेटिकल, बट आई ट्राई टू मेक द थिंग्स इंटरेक्टिव, ताकि थ्योरी ना लगे कि हाँ जी लेक्चर चल रहा है, थ्योरी चले जा रही है, मैं इधर से सिर्फ बोलता रहूं और आप सिर्फ उधर से क्लाउड के बारे में सुनते रहो। ऐसा नहीं करना, ठीक है। हमें इसको ज्यादा से ज्यादा और इंटरेक्टिव करना है आगे, क्योंकि आज तो हमारा थ्योरेटिकल हो गया, कल से हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर जाएंगे। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे किसी चीज की, फिर प्रैक्टिकल, फिर थोड़ा थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल। प्रॉब्लम यही है ऐसी चीजों के साथ कि थ्योरेटिकल भी नॉलेज होनी जरूरी है इन सब चीजों की। अब जैसे जावा है, C++ है, पाइथन है, इनकी थ्योरी नहीं आती, काम चल जाएगा,
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, थ्योरी नहीं आती, आप कोड करके इतना बढ़िया आप खुद को बना सकते हो कि थ्योरी की जरूरत नहीं है। बट यहाँ ऐसे सिनेरियोज नहीं होते। AWS हो गया, इनके आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता होने चाहिए, इनकी थोड़ी थोड़ी थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, तो इनके बारे में हम लोग को धीरे धीरे भी डिस्कशंस करने हैं। ओके, तो बेसिकली अब हम लोगों ने जितना भी देखा उसके रिलेटेड अगर कुछ कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो बता दे, नहीं तो कुछ और चीजें हैं जो मैं ऐड ऑन कर देता हूँ इसमें। ठीक है, देखो अब मैंने इसमें आपको कुछ जॉब्स के बारे में बताता हूँ। अभी मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ इसमें, कुछ जॉब्स के बारे में बताता हूँ कि जब आप क्लाउड पढ़ते हो तो क्या क्या जॉब्स होती है। देखो एक रोल होता है, एक जॉब होती है क्लाउड इंजीनियर के नाम से। ठीक है, क्लाउड इंजीनियर के अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग तरह के काम होते हैं, जिसमें कि आप क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर भी हो सकते हो, आप सिस्टम इंजीनियर हो सकते हो, क्लाउड डेवलपर हो सकते हो, क्लाउड आर्किटेक्ट हो सकते हो, या नेटवर्क इंजीनियर हो सकते हो। तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ जॉब्स इन क्लाउड। तो जो आपका रोल होता है भाई, वो क्या होता है आपका, वो होता है क्लाउड इंजीनियर का। ओके, अब अगर रोल ये है तो आप एज अ सर्व क्या करते हो, आप एज अ क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर सर्व कर सकते हो, या फिर एज अ सिस्टम इंजीनियर। ये सब क्लाउड की बात है, और मैं सिस्टम इंजीनियर लिख रहा हूँ, ये भी क्लाउड ही है। और you could be a cloud developer, or you could be a cloud architect, or you could be a network engineer। सब कुछ क्लाउड पे हो, ये ध्यान रहे। Which one should we learn, AWS, Azure और GCP? जो फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, तो देखो वही पढ़ना पड़ेगा। अंकुश, we don't have any other options for the next 5 days and next 4 days। अब next 4 दिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, you have to learn AWS। आप पैरेलली कोई GCP पढ़ना चाहते हो, गुड, आप पढ़ सकते हो, बट AWS जरूर पढ़ो, उसके अलावा जो पढ़ना पढ़ो, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन AWS जरूर पढ़ो। ठीक है, तो मेन ना इसका देखो लर्निंग कर्व होता है हर चीज का। जैसे हर चीज को जब पढ़ रहे हैं ना, तो लर्निंग कर्व समझ के चलते रहो। ठीक है, अभी एकदम से ऐसा आपने इधर उधर स्विच नहीं होना है कि 2 दिन क्लाउड पढ़ा आपने, Amazon AWS पढ़ा, 2 दिन बाद बोर हो गए, कहते नहीं अब नहीं पढ़ना। अब यही तो है जो आपको सस्टेन करना सीखना, मेंटेन करना सीखने की, जो चीज़ स्टार्ट की एटलीस्ट उसको खत्म करें, फिर दूसरी चीज़ पे स्विच करना। ठीक है, ये मैं हमेशा आप लोगों की छोटी सी बस एक एडवाइस दे रहा हूँ, ताकि भाई आप लोगों को इन फ्यूचर बहुत काम आएगी ये बात। ठीक है, तो कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं, ऐसे रोल्स होते हैं जिसमें आपको मिलते हैं। अब स्किल्स की बात करें, लाइक प्रीरिक्विजिट की बात करें कि क्या क्या चाहिए होता है क्लाउड के लिए। देखो, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हो आप, मतलब जो स्किल है, इट्स अ स्किल, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जो आप मेंशन कर सकते हो इन फ्यूचर अपने रिज्यूमे में कि आई एम अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, आई नो हाउ टू प्रोवाइड द सर्विसेज। ओके, स्टोरेज के बारे में आप बता सकते हो कि स्टोरेज किस तरीके से आप हैंडल करना जानते हो, कि ऑनलाइन कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, हर किसी को नहीं पता। ओके, इसके अलावा नेटवर्किंग, वर्चुअलाइजेशन, लाइनेक्स पे आपका थोड़ा थोड़ा हैंड्स ऑन होना जरूरी है। अच्छा, आप सब लोग लाइनेक्स मशीन पे हो क्या? Could you please show the jobs related to cloud? हाँ बिल्कुल, देखो आपको किसी पे भी जहाँ पर देखना चाहो देख सकते हो, naukri.com है या फ्रेशर वर्ल्ड है, जहाँ मर्जी जाकर देखो, आपको बहुत जॉब्स मिलेंगी। आप देख रहे हो यहाँ पर ना जॉब्स के नाम भी कैसे लिख के आ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग? पास, IaaS, SaaS, ऐसे लिख कर आ रहे हैं नाम, सोचो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के जॉब्स देखो, पहले नंबर ऑफ जॉब्स,
देख रहे हैं आप भाई, नंबर ऑफ जॉब्स हैं ये क्लाउड कंप्यूटिंग में। ये फ्रेशर एक्सपीरियंस सब कुछ मिला मिलू कर है, ठीक है। ये फ्रेशर्स के लिए है। इनके अंदर जाने से ना एक बेनिफिट मिलेगा। मैं सब लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि इन जॉब्स के अंदर जाओ और अंदर जाकर रिक्वायरमेंट देखो कि क्या मांग रहे हैं, ठीक है। सपोज मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग की कोई जॉब देखनी है, क्लाउड आर्किटेक्ट मांगा, देखो इसमें, ठीक है जी। तो कहते हैं क्लाउड आर्किटेक्ट होना चाहिए, तो ये ना लिखते हैं कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए रिक्वायरमेंट। ये देखो, ये तो चलो एक्सपीरियंस्ड वाले की जॉब है, बट आप ये देख सकते हो कि क्या क्या मांगा जाता है एक्सपीरियंस वालों से भी, कि भाई AWS या ऐसा कुछ तो आता ही हो, पहली बात। डॉकर वगैरह आता हो, कंटेनर टेक्नोलॉजीज होती हैं, काफी काम आती है। क्लाउड फॉर्मेशन बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, कुछ ऐसी बातें भी जरूरी है समझनी। क्रिएट क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट टू ऑटोमेट क्रिएशन ऑफ AWS इमेजेस, फिर कुछ और इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और चीजें देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स एंड पास पता होना चाहिए आपको। तो ऐसे कर करके ना रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करो, देखो कि कंपनीज जॉब में क्या मांग रही है। ये सिर्फ क्लाउड के लिए नहीं, हर टेक्नोलॉजी के लिए करो। भाई आप पाइथन जानते हो, पाइथन में भी यही करो। पाइथन सर्च करो इंटरनेट पे जाकर और देखो पाइथन में क्या क्या मांग रहे हैं जॉब में। AWS सर्च किया, AWS में देखा क्या क्या मांगते हैं जॉब्स के अंदर। ऐसे ढूंढना शुरू करो चीजों को, उससे आपको पता चलेगा कि IT इंडस्ट्री में क्या चीज डिमांड में है, क्या है जिस चीज पर जॉब्स मांगी जाती हैं। अभी सिर्फ ऐसे आंख बंद करके C++, डेटा स्ट्रक्चर ये सब मत पढ़ो। इन चीजों के थ्रू जाकर ये जानने की कोशिश करो कंपनीज क्या मांग रही है। ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हो, चलो ठीक है, मैं लाइनेक्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा, इसकी जरूरत पड़ेगी भाई आप लोगों को। अगर है आप लोगों के पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो आई विल टेल यू कि आपको ऐसी चीजें बहुत बहुत ज्यादा एड ऑन्स होते हैं भाई आप लोगों के लिए। विंडोज देखो कौन लोग यूज करते हैं, विंडोज इंजीनियर थोड़ी ना यूज करता है कोई। इंजीनियर क्या यूज करेगा भाई, वो लाइनक्स यूज करेगा ज्यादा, ठीक है। तो अपने आप को अगर आप इंजीनियर कहलाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी बदलना पड़ेगा आपको। विंडोज तो डॉक्टर, लॉयर सब चला लेते हैं, ठीक है ना। आप AWS वगैरह पे ना कमांड्स का बहुत ज्यादा रोल होता है, इसलिए हम लोगों को इनको अच्छे से सीखना है। ओके, और एनी अदर क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, इसके अलावा कुछ भी? और देखो, अगर मैं आप लोगों को मनी वाइज बताऊं कि एक क्लाउड में एवरेज सैलरी क्या होती है, ध्यान से देखना। क्लाउड इंजीनियर एवरेज सैलरी इन इंडिया, ठीक है जी। ये एक बार आप देख रहे हो, एवरेज सैलरी है ये, एवरेज फ्रेशर के लिए 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस अगर किसी का है ना, दिस इज द एवरेज सैलरी। लोग जब जॉब स्टार्ट करते हैं ना एज अ फ्रेशर, 3-3, 4-4 लाख पे सेटल करना पड़ता है। मतलब उनको वो बहुत बड़ा लगता है कि हाँ जी 3-4 लाख का भी बहुत अच्छा है, बट आई एम सेइंग जब ये है आप लोगों के सामने तो वाई इतना छोटा सोचने क्यों है, जब आप बड़ा सोच सकते हो। आपके सामने एक बड़ा ऑल्टरनेटिव, एक बड़ा ऑप्शन खुला हुआ है भाई, कि मैं क्लाउड इंजीनियर जैसा कुछ देखूं। तो अगर और कुछ देखना चाहते हो तो और अंदर जा जाकर देखना शुरू करो। ये बिल्कुल फ्रेशर लेवल पे देख रहे हो, 5 लाख पर ईयर एवरेज बेस पे है। तो बेस पे एक बिल्कुल बेसिक सैलरी है, लोएस्ट सैलरी है 5, ठीक है जी। तो ये भी चीजें हैं जो कंसीडर की जाती है, क्योंकि एट द एंड आप जॉब किसके लिए कर रहे हो, मनी अर्न करने के लिए, अपनी लाइफ अच्छी करने के लिए। उसके लिए बस एक ही तरीका है कि ज्यादा पैसे कमाना है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है बाकी लोगों से। ओके, तो आई थिंक अभी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि टुडे वी जस्ट गॉट टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ क्लाउड, बेसिक्स ऑफ AWS। ये सारी आज बेसिक बातें हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है।
अब कल से क्या होगा, हम लोगों का प्रॉपर AWS चल रहा होगा कि हम लोग प्रॉपर AWS पे काम करना शुरू कर देंगे। अपने इंस्टांस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, मशीन कैसे क्रिएट की जाती है, डिप्लॉयमेंट कैसे कर सकते हो, ऐसी बातें हम कल से शुरू कर देंगे। ओके, Salesforce is also a cloud computing सर्विस। ये देखो, Salesforce भी ऐसा बोल सकते हो, मतलब है एक क्लाउड सॉल्यूशन ही, ठीक है। तो CRM बोलते हैं जिनको हम, तो ये होता क्लाउड सॉल्यूशन ही है, ठीक है। तो इसके कुछ कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं, जैसे Tableau सॉफ्टवेयर हो गया, ऐसे ऐसे इसके कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हैं। या इट्स अ क्लाउड service, cloud solution we can say. Okay, so I think we'll wind up the session for today's time. Like आज के लिए मेरे ख्याल से काफी है। Okay, thank you Ravikant ji for this informative session. Let's meet tomorrow at 3:30 p.m. Yeah, sure, ma'am. Yeah, So, thank you so much. Thank you.